Good morning. Good morning, all. Today we have a seminar on VCM on state and succession planning through will and taxation of deceased person by CA Pankaj Shah sir from Indore. Pankaj sir, I welcome you on behalf of Aurangabad branch and Latur branch of WIRC of ICAI. I welcome all the participants. आज का टॉपिक काफी अच्छा है, बहुत बार इसमें काफी कंफ्यूजन्स रहते हैं. So sir is having very good knowledge in it. So पंकज सोनी सर थॉट दैट कि ये टॉपिक रिसेंटली रहना चाहिए. ऐसे भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनलाइजेशन और डेट्स नजदीक आ रही है. So I'll not take much time and I'll request Pankaj to kindly have his welcome remarks. Good morning, everybody. Welcome, Pankaj Shah sir, on behalf of both the branches. We all keep on working, keep on earning, keep on making savings, investments, all. And one of the factor is we all want to give that to our coming generation so that they can also prosper in life. But if that doesn't happen properly, then whatever we have thought on the financial side, on the non-financial side about the prospects of our future generation and our family, that all can go in vain. So if there is no goodwill, then the relations can be ill. So we have to take utmost care while drafting the will. It is seen that many people, they don't understand the importance of the will and they don't draft it, and they die interstate without making a will, which can create a problem amongst the legal heirs and the people surviving. So understand the importance of that and the taxation angle that of that. We have a very eminent speaker, CA Pankaj Shah. If I'm not wrong, he has given close to 300 seminars in various branches and on various forums. So I welcome you, sir, and thanks for accepting our invitation. Over to you, Praveen. Very well said, Pankaj. कि काफी लोग बिल नहीं बनाते हैं, later on we have a very what we say कि legality में बहुत अटक जाते हैं. So it is a very important subject. Now I request CA Vishal sir, chairman of the Latur branch, to have his welcome remarks. Over to you, sir. Vishal sir. Good morning to Honorable Speaker CA Pankaj Shah sir from Indore, Chairman of Aurangabad branch CA Pankaj Soni sir, senior members, colleagues and dear friends. First of all, I would like to heartiest welcome to all participants from Aurangabad branch and Latur branch for attending the VCM on the subject of estate and succession planning through will and taxation of deceased person. Considering our day-to-day practice, today's seminar is very important, and in this session, speaker will highlight on the various issues relating to succession, full succession, partial succession, and taxation of deceased person. Thank you so much. Thank you, Vishal sir. Now I introduce today's speaker, Pankaj Shah sir. He is a chartered accountant. He is a qualified CS, insolvency professional, registered valuer for securities and financial assets. He has a bachelor degree in law, business administration. He has a diploma degree in information system audit. He is also pursuing PhD in taxation. He was a chairman of Indore branch of CIRC of ICAI Indore for 1920. He is also on advisory board of School of Commerce, faculty of Devi Ahilyabai University. He is a board member of Tax Bar at Tribunal. He is also a prolific author on taxation and national speaker in seminars and conference. He is regularly representing before ITAT, BIFR, Settlement Commission and other authorities. He
His opinion and articles are published in leading daily newspapers. Once again, I welcome Pankaj sir on this forum, and I request you to kindly start the session. Thank you, Praveen ji. Respected Chairman of the Aurangabad branch, Pankaj Soni ji, Chairman of Latur branch, Vishal ji, MOC, Praveen ji, seniors and friends. Very good morning to one and all. आज इस सुबह के समय में शनिवार के दिन हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो एक टैबू की तरह हमारे यहाँ देखने जाता है। हमारे यहाँ पहले किसी को भी विल बनाने के लिए अगर आप आगे से बोलो, अरे मुझे क्या हो रहा है, मैं भी से विल क्यों बनाऊं, आदमी जो है इसमें कुछ संकोच होता था, आदमी को हम बोले तो आदमी को अदरवाइज ले लेता था। पर विगत एक साल में जो पोजीशन बनी है और कई जो इंटरस्टेट डेथ्स हुई, कई सारे जो इश्यूज अराइज हुए, उसके बाद स्वतः ही इंसान के अंदर एक जागरूकता आ रही है कि नहीं, मुझे मेरी विल बना लेना चाहिए, अदरवाइज भविष्य में मैं अपने जो वंशज हैं उनको अच्छी यादों के बजाय ये देके जाऊंगा, वो मुझे कोसेंगे कि अरे विल नहीं बना के गए, हमको धक्के खाना पड़ रहे हैं इतने। तो इसलिए विल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे देश में विल को या एस्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग को एक टैबू की तरह देखा जाता है, जबकि आप देखें अभी हाल ही में यूएस का एग्जांपल हमने जो देखा है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे, यूएस में एक नया टैक्स आ रहा है तो उन्होंने एक लीगल सेपरेशन कर लिया, डिवोर्स कर लिया, विच इज सेड टू बी अ वेरी बिग टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के लिए विदेश के अंदर जागरूकता है, वो सोचते हैं, हम लोग दिल से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। बट कीपिंग दिस थिंग्स अपार्ट, रिसेंटली आई थिंक 2 साल पुरानी बात है, मेरे पास एक विल आई सर, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की विल आई, और उसकी विल को वेट करने के लिए उसने किसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से विल बनवाई। वो मेरे पास में लेके आया, मैंने विल देखी, शोबाजी और जूजा बहुत ज्यादा था उसके अंदर। तो मैंने पूछ लिया, बोला यार आपको कितना चार्ज किया इस व्यक्ति ने? सर विल बनाने के 5 लाख रुपए चार्ज किए गए। अब आप इमेजिन करें, एक विल बनाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करे। उसके बाद मैंने देखा, मिला यार इस फील्ड के अंदर तो बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग के बहुत सारे तरीके हैं, और एक प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग अगर हम किसी को करके देते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। स्पेशली आज का जो समय है जिसके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, तो अनसर्टेनिटी तो ऐसी है कि किसी ने कहा है कि कुछ जिस तरह तेज हो गई है रफ्तार जिंदगी की, सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। तो वैसे ही जिस तरीके से आज का समय चेंज हो रहा है, पहले फर्स्ट वेव आई, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर एकदम से सेकेंड वेव आई विच वॉज अ मैसिव, उसके बाद फिर अभी सब ठीक है, थर्ड वेव की आगाही सुनने में आ रही है। तो बहुत अनसर्टेन टाइम है। ऐसे टाइम के अंदर हमें प्रॉपर एस्टेट एंड सक्सेशन प्लानिंग अपने सारे क्लाइंट्स की करवा लेना चाहिए, जिससे उनको बेनिफिट्स भी हैं। कई सारे जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं वो डिस्प्यूट्स अभी रोक सकते हैं। जब इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं तो कई सारी भ्रम भी हैं इसमें, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो शायद हमको पता भी नहीं, या हमें पता भी है तो भी हाफ नॉलेज है। कई चीज हमने मान ली है कि ऐसा है, जबकि वैसा नहीं होता। तो वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करने जाएंगे। पर एक निवेदन है आप लोगों से कि इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे हम। मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में कुछ केस स्टडीज भी लूंगा जिसमें आप लोगों के उत्तर भी चाहूंगा मैं, तो आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स के अंदर उसके आंसर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ, जिसमें आज हम इंटरस्टेट सक्सेशन को पहले देखेंगे। सक्सेशन प्लानिंग करने के पहले उसकी जरूरत क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरस्टेट सक्सेशन में क्या होता है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन विल के थ्रू जो होता है उसमें क्या होता है, नॉमिनेशन, एचयूएफ के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर कारगर हैं, और कुछ प्राइवेट ट्रस्ट का एक इंट्रोडक्शन समय के हिसाब से हम ले लेंगे, और एक टैक्स इम्प्लीकेशन को भी हम कवर करेंगे। तो ये कुल मिला के आज का कवरेज एक रहेगा। अब हम शुरुआत करें विल सक्सेशन प्लानिंग क्यों। सक्सेशन प्लानिंग के लिए हमारे जहन में जो सबसे पहला सक्सेशन का डिस्प्यूट आता है वो है महाभारत का।
महाभारत हमारे देश का सबसे माइटीएस्ट एम्पायर था, हस्तिनापुर, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे, पर वो पूरा का पूरा साम्राज्य इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसमें प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं हुई। तो हमारे देश में सबसे पहला झगड़ा अगर किसी सक्सेशन प्लानिंग का हुआ है तो वो है महाभारत का। इट डिस्ट्रॉयड द माइटीएस्ट एम्पायर ऑफ हस्तिनापुर। सिमिलरली आज के समय में हम देखें तो भूषण ग्रुप, उनके अंदर जो विवाद हुए तो $1 बिलियन की उनकी जो कंपनी की मार्केट वैल्यू थी वो वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं थी, डिस्प्यूट हुए। मोदी ग्रुप, जीपी मोदी ग्रुप हम जानते हैं, इस ग्रुप के अंदर भी 1980 के दरमियान की बात है, आपस में बहुत झगड़े हुए, ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ, पर लास्ट 10 सालों में जब उन्होंने प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करी तो अगेन उन्होंने अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर लिया। इसी के विपरीत डाबर ग्रुप की बात करें या रेनबेक्सी की बात करें तो इन लोगों ने प्रॉपर सही समय पे सही सक्सेशन प्लानिंग कर ली, जिसकी वजह से उनको बहुत एडवांटेजेस मिले और एक प्रॉपर बिजनेस की कंटिन्यूटी मेंटेन हुई। अदरवाइज क्या होता है, झगड़ों के अंदर फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, फैमिली की, बिजनेस की, रिलेशंस के अंदर जो खटास आ जाती है उसको हम प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करके अवॉइड कर सकते हैं। एक बहुत पुराना कंसेप्ट है कि एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, और ये गाइडेंस लेने के लिए कोई घर में जैसे बड़ा बुजुर्ग होता है तो झगड़े फसाद कम होते हैं, तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी कोई ऐसा गाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। कई परिवारों में तो हम जानते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे, वो एक फैमिली एडवाइजर की तरह भी रहते हैं, वो बिजनेस के लिए भी एडवाइस करते हैं, फ्यूचर के लिए भी एडवाइस करते हैं। एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आता है, बॉम्बे में क्रॉफर्ड बेली करके एक लॉ फर्म है, और क्रॉफर्ड बेली फर्म के अंदर उस समय पार्टनर थे आर ए शाह साहब। एक मीटिंग ले रहे थे वो, जिसमें ललित मोदी जो आईपीएल वाले थे, वो अपने प्लान बता रहे थे कि साहब मैं तो ऐसा कर लूंगा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ। उनको 10 मिनट सुनने के बाद आर ए शाह साहब ने बोला था, मुझे आज भी वो बात याद आती है कि अगर ललित मोदी ने वो मान ली होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। बोले, ललित माइंड योर स्पीड, थोड़ा धीरे चलो, इतना तेज चलने में चीजें बिगड़ जाएगी। पर उन्होंने नहीं माना और ये स्थिति हो गई। इसलिए एक ऐसा गाइडिंग पुरुष होना चाहिए हर फैमिली के अंदर, हर बिजनेस के अंदर, जो एक निर्विवाद पुरुष हो। अब पहले ऐसे लोगों को हम कंपनीज, अगर कंपनीज की सक्सेशन प्लानिंग हो तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लेके आते थे, पर आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर भी जो लाइबिलिटीज आ गई हैं, तो एक कंसेप्ट एडवाइजरी बोर्ड का बहुत अच्छा डेवलप हुआ है कि कंपनीज एक एडवाइजरी बोर्ड रखती है, मार्गदर्शक मंडल, जैसे हमें हमारी राजनीति में भी प्रचलित होते जा रहा है। तो इस तरीके का एडवाइजरी बोर्ड हो, कोई एक सीनियर व्यक्ति हो जिसको हम रिजॉर्ट कर सकें, आपस में कुछ झगड़े हैं, कुछ सेटल नहीं हो पा रहा, तो उनके पास जाके गाइडेंस ले सकें। इसका होना बहुत जरूरी है, और इस देखरेख में जब सक्सेशन प्लानिंग होती है तो हमारे प्रोफेशन को ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोगों के ऊपर क्लाइंट को विश्वास रहता है, वी आर इन अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट, और इस वजह से बिल बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है या सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, हम बना सकते हैं। अब सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन 3-4 तरीकों से हो सकते हैं। एक तो इंटरस्टेट, कोई बिना विल बनाए चला गया। एक होती है टेस्टामेंट्री सक्सेशन की, जहां पर विल बनाई गई है। एक होती है एचयूएफ नॉमिनेशन, जॉइंट होल्डर्स का केस, इस तरीके से भी कुछ सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। और एक प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से। तो ये कॉमनली यूज 4 प्रकार के माध्यम है। हम इंटरस्टेट सक्सेशन की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार लोग बिना विल बनाए चले जाते हैं। तो लॉ क्या है, ये एक बर्ड्स आई व्यू ऑफ लॉ दिया है मैंने। अगर कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है बिना विल बनाए, सर लैंग्वेज हिंदी इज फाइन, और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश, और इंग्लिश whatever is convenient to you? Sir, English will do. Hindi English combination will do, sir. No problem. ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। सो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है बिना विल बनाए तो क्या होगा? तो सर कल ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन फेमस चल रहा है सब जगह, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो उसी लाइट में हम देखें तो हमारे यहाँ पर हर रिलीजन वाइज अलग सक्सेशन लॉ है। जैसे अगर हिंदू, जैन, सिख है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में फॉलो होगा, अगर मुस्लिम है तो उस पर शरीयत लॉ लगेगा, और क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू या और कोई है तो उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा। इसके ठीक विपरीत एक तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। अगर किसी ने विल बनाई है तो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, सिख, जैन,
इन सब के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा और केवल मुस्लिम्स के लिए शरीयत लॉ लगेगा। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हमारे सामने हैं। विल नहीं बनाई है तो अपने अपने सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाओ, विल बनाई है तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर कोई हिंदू मेल के बारे में पहले हम बात करेंगे, कोई हिंदू मेल एक्सपायर हो जाता है बिना विल बनाए तो उसकी पूरी संपत्ति उसके क्लास 1 लीगल हेयर्स को मिलेगी। ये ध्यान से समझिएगा, अगर कोई हिंदू मेल एक्सपायर हो गया है तो उसकी पूरी संपत्ति उसके क्लास 1 लीगल हेयर को मिलेगी। अगर कोई भी क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है, क्लास 1 लीगल हेयर वैसे तो 16 है जो लॉ में डिफाइन किया है, पर अगर कोई भी क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है तो फिर क्लास 2 लीगल हेयर में जाएगी। क्लास 2 भी नहीं है तो उसके पिता के रिश्तेदार एग्नेट, अगर पिता की तरफ से भी कोई रिश्तेदार नहीं है तो उसकी माता के रिश्तेदार कॉग्नेट, और अगर ये कोई नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसके लिए भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी संपत्ति जो कभी कोई क्लेमेंट नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट इंडिया की हो जाएगी। अब हम बात करें क्लास 1 लीगल हेयर में क्या है, तो प्रवीण जी क्लास 1 लीगल हेयर के अंदर मदर, उसकी विडो, उसके बच्चे ये आएंगे और इनका इक्वल शेयर रहेगा। तो मदर, विडो, सन एंड डॉटर, फादर इज नॉट अ क्लास 1 लीगल हेयर, पिता को क्लास 1 लीगल हेयर नहीं माना है। मदर है, ऊपर वाइफ एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में फिर बेटा हो बेटी हो दोनों को समान अधिकार है, पूरे अधिकार है। ये तो प्राइमरी हो गया। अब इसमें थोड़े से हम कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस के बेसिस पे फिर कुछ केस स्टडीज भी हम देखेंगे। अब ये देखें, ये टोटल 16 क्लास 1 लीगल हेयर हैं। ये चार्ट को आप प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल में भी लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, उसकी माँ, उसकी विधवा पत्नी, ये तो क्लास 1 लीगल हेयर हो गए। फिर उसका बेटा और बेटी। अब दुर्भाग्य से अगर उस व्यक्ति के मरने के पहले ही उसका बेटा मर चुका है तो उसकी विधवा बहू क्लास 1 लीगल हेयर हो जाएगी, उसका पोता और उसकी पोती ये क्लास 1 लीगल हेयर हो जाएंगे। अब और अगर हम एक आगे कंडीशन देखें, हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बहुत एग्जॉस्टिवली इसको डिफाइन कर रखा है। कोई व्यक्ति के एक्सपायर होने के पहले उसका बेटा भी मर गया, उसका पोता भी मर गया, उसकी पोती भी मर गई, तो उसकी बहू, उसके पोते की वाइफ, उसकी पोत बहू, उसका पड़पोता और उसकी पड़पोती ये क्लास 1 लीगल हेयर है। पर अगर उसका बेटा भी नहीं है, उसकी पोती भी नहीं है, तो पोती की केवल बेटी क्लास 1 लीगल हेयर, पोती का बेटा क्लास 1 लीगल हेयर नहीं है। ध्यान रखें, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, पड़पोता है, पड़पोती है, पोती है और पोती की केवल बेटी है, पोती का बेटा क्लास 1 लीगल हेयर में नहीं आएगा। अब बेटी की साइड आए तो बेटी है, बेटी अगर नहीं है तो नवासा नवासी को जाएगा, नवासी नहीं है तो नवासी के बेटे और बेटी को जाएगा, नवासा नहीं है तो नवासे की बेटी को जाएगा, नवासे के बेटे को नहीं जाएगा। तो ये 16 केसेस हैं, ये 16 क्लास 1 लीगल हेयर हैं। तो इसमें हमें बस ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाली लाइन में अगर कोई है तो नीचे फ्लो नहीं होगा, वहीं जाके रुक जाएगा। बेटा है तो बेटे को मिल जाएगा, बहू को नहीं मिलेगा। बेटी है तो बेटी को मिल जाएगा, उसके नवासा नवासी को नहीं मिलेगा। बेटा नहीं है और बेटी नहीं है तो फिर नीचे मिलेगा, नीचे वाला भी नहीं है तो उसके नीचे वाले को मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये देखना है कि जो अर्लीस्ट रिलेटिव है इस साइकिल के अंदर उसको मिल जाएगा, इक्वल शेयर के अंदर ये संपत्ति बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया सर? ये अगर क्लियर है तो अब हम बात है क्लास 2 लीगल हेयर पे। क्लास 2 लीगल हेयर में अब पिताजी की भूमिका आती है। अगर क्लास 1 लीगल हेयर कोई भी नहीं है तो क्लास 2 लीगल हेयर में देखेंगे तो क्लास 2 में अगर पिता है तो सब कुछ पिता को मिल जाएगा, फिर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 2 में पिता नहीं है तो भाई या बहन को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पिता नहीं है तो भाई बहन को मिलेगा, भाई बहन भी नहीं है तो नाना नानी या दादा दादी को मिलेगा। भाई बहन है तो फिर और ऊपर नहीं जाएगा। दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है तो फिर चाचा चाची, चाचा को या पिता के सिबलिंग को, चाचा को या बुआ को, इनको मिलेगा। तो ये क्लास 2 लीगल हेयर हो गए। और क्लास 2 लीगल हेयर में भी अगर कोई नहीं आता है तो एग्नेट, पिता के रिश्तेदार कोई भी हो जाए या माता के रिश्तेदार कोई हो जाए वो कॉग्नेट हो जाएगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और जो भी इन केस स्टडीज का सही जवाब सबसे पहले देगा तो उसको पंकज सोनी जी जो है एक गिफ्ट देंगे, हर क्वेरी वाइज एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है सर? तो रेडी हैं आप लोग? सबसे पहली केस स्टडी ये है जिसके अंदर अब यहां पर एक व्यक्ति है, उसकी माता है,
उसके पिता जिंदा है, उसकी पत्नी जिंदा है, उसका बेटा जिंदा है, उसकी बेटी जिंदा है और उसकी बहू है। अब एक व्यक्ति के इंटरस्टेट डेथ के बाद किस किस को प्रॉपर्टी मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसमें आपका जवाब चाहिए। बताएं सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। चैट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हैं। इसका जवाब है, सबसे पहले मां को मिलेगा, पिता को नहीं मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, बेटे को मिलेगा, बेटी को मिलेगा, पर क्योंकि बेटा जिंदा है तो इसलिए बहू को नहीं मिलेगा। राइट सर। और इसमें हम देखें तो सही जवाब सबसे पहले दिया है रमेश थेटे जी, नहीं, फादर को नहीं मिलेगा। मॉम, वाइफ, सन एंड डॉटर, अरुण तोलवानी जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। तो अरुण तोलवानी जी जो है एक प्राइज के हकदार हो गए हैं। एक डेयरी मिल्क या कोई अच्छा सा प्राइज आप दे सकते हैं पंकज सोनी जी, या जो भी आपकी श्रद्धा हो। अब अगले सवाल के जवाब के लिए लातूर ब्रांच के चेयरमैन जो है विशाल जी, वो इसमें अवार्ड देंगे। आपके सामने सवाल ये है, आपको इंटरेस्टेड मेल अगर एक्सपायर हुआ है तो उस केस में उसकी पत्नी है, उसके भाई हैं, बहन है, विधवा बहू है और स्वर्गवासी बेटी का बेटा है, नवासा है, तो उसमें किस किस को मिलेगा? अभी तक सही जवाब नहीं आया है सर इसका। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कोई इंटरस्टेट मेल एक्सपायर हुआ है, उसकी पत्नी जीवित है, उसका भाई जीवित है, बहन जीवित है, विधवा बहू जीवित है और स्वर्गवासी बेटी का बेटा जीवित है। प्रीति असावा जी ने सही जवाब दिया है। इसका जवाब जो है उनकी पत्नी को मिलेगा, उनकी विधवा बहू को मिलेगा और बेटी को मिलता, पर बेटी नहीं है तो नवासा है, तो नवासा क्लास 1 लीगल हेयर हो जाएगा, इसलिए उनको भी मिलेगा। तो प्रीति असावा जी सर अवार्ड के लिए हकदार हो गई हैं। अब थर्ड क्वेरी जो है, इस थर्ड क्वेरी के सही जवाब पे पंकज सोनी जी प्राइज देंगे विनर को। अब ये आपके सामने है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसके जो है इस मेल की शादी नहीं हुई थी, तो इसके केवल भाई बहन जिंदा, 2 भाई जिंदा है, 2 बहन जिंदा है और एक नाना जी जिंदा है। तो इसमें किसको मिलेगा संपत्ति का अधिकार इंटरस्टेट डेथ में, अगर विल नहीं बनाई है तो? अरविंद कुमार राजपुरोहित जी ने सही जवाब दिया। प्रीति जी नहीं, नाना जी को नहीं मिलेगा क्योंकि सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स को मिल जाएगा। श्रीकांत समदानी जी ने भी सही जवाब दिया है। नाना जी को नहीं मिलेगा, नाना जी सिबलिंग के नीचे आते हैं क्लास 2 लीगल हेयर के अंदर, तो इसलिए दोनों भाई और बहन को मिल जाएगा। राइट सर। सो अब ये जो क्वेरी है इसका जवाब देने पर प्रवीण जी अब बताएं, इस केस में सिचुएशन में इंटरस्टेट मेल एक्सपायर हुआ है और इस इंटरस्टेट मेल के एक्सपायर होने के बाद में इसके मामा का बेटा एक जिंदा है और एक चाचा की बेटी जिंदा है, तो किसको मिलेगी संपत्ति? पद्मनाभन जी ने सही जवाब दे दिया, चाचा की बेटी को। बिल्कुल सही अरुण तोलानी जी, क्योंकि एग्नेट में आ जाते हैं। मामा का बेटा जो है वो कॉग्नेट में आएगा, तो अभी एग्नेट को कंसिडर करेंगे और बिल्कुल सही जवाब। तो ये हमने समझ लिया क्लास 1 लीगल हेयर क्या होते हैं। अब अगला सवाल आपसे, एक व्यक्ति का सौतेला बेटा है, स्टेपसन, तो क्या वो क्लास 1 लीगल हेयर है या नहीं है? गुरदीप जी, प्रीति जी, विश्वास जी, कुणाल जी, प्राजक्ता जी, विश्वास जी, सब ने जवाब दे दिया यस, क्योंकि ये सब इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं। इनकम टैक्स में क्लियर कट लिखा हुआ है। इनकम टैक्स में क्या लिखा है कि चाइल्ड इंक्लूड्स द स्टेप चाइल्ड, पर हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऐसा नहीं दिया हुआ है सर। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर इन्होंने क्लियर कट दे रखा है कि चाइल्ड मीन्स अ नेचुरल बॉर्न सन और अन अडॉप्टेड सन। तो आपका जो स्टेप चाइल्ड अगर है तो ही इज नॉट योर चाइल्ड एज पर क्लास 1 लीगल हेयर, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर क्लास 1 लीगल हेयर, उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। तो कई बार इनकम टैक्स में कुछ और रहता है, पर वही जरूरी नहीं कि सब जगह हो, तो इसलिए इनकम टैक्स में भले ही स्टेप चाइल्ड को क्लास 1 लीगल हेयर माना, इनकम टैक्स में स्टेप चाइल्ड भले ही हो हमारा, उसको चाइल्ड मानते हो,
पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ही इज नॉट एंटाइटल्ड, ही इज नॉट अ क्लास 1 लीगल हेयर। राइट, मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं फीमेल इंटरस्टेट की। आप बोले उसमें कुछ अलग है क्या? हाँ, इसीलिए हम ये सब चीजें हमें बताएगी कि विल क्यों बनाना चाहिए, जिस तरीके के परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लिकेशन यहाँ आएंगे, इससे हमें क्लियर होगा। फीमेल इंटरस्टेट के अंदर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये चार्ट के अंदर, सबसे पहले उसके सन को, डॉटर को, हस्बैंड को, ये क्लास 1 लीगल हेयर होगा एक तरीके से। उसके सन, डॉटर, हस्बैंड, तो उसके हस्बैंड को मिलेगा, बेटे को और बेटी को, मतलब उसके चिल्ड्रन को। इसके बाद अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो उसके हस्बैंड के रिश्तेदारों को मिलेगा। अगर हस्बैंड की तरफ से कोई नहीं है तो उसके पेरेंट्स को मिलेगा। अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर उसके फादर की तरफ के रिश्तेदारों को, एग्नेट्स को, और फादर की तरफ भी कोई नहीं है तो मदर की तरफ के रिश्तेदारों को। तो सबसे पहले सन, डॉटर, हस्बैंड, फिर हेयर्स ऑफ हस्बैंड, फिर उसके पेरेंट्स, फिर हेयर्स ऑफ फादर। ये फीमेल इंटरस्टेट हो गया। अब इसमें फीमेल कौन सी प्रॉपर्टी दे सकती है और कौन सी नहीं दे सकती? तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी तो इस इंटरस्टेट जो फॉर्मूला हमने बताया उसमें आ जाएगी, या अगर विल बनाई है उसमें तो विल के जरिए भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी दे सकती है। पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ एक कंसेप्ट होता है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट का, बेसिकली लिविंग इंटरेस्ट का, कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसके बाद में उसकी संपत्ति उसके बच्चों को मिले, या बच्चों के अलावा किसी और को मिले, बच्चे अगर नहीं है तो, पर उसने कह दिया कि जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ये मकान में मेरी वाइफ रहेगी, इसका अधिकार है, लिविंग इंटरेस्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में एक आपके सामने एक केस मैं बता रहा हूं, साधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब नारी के। एक व्यक्ति थे, सरदार जी, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनकी वाइफ को उन्होंने लाइफ इंटरेस्ट दिया मकान में कि ये मेरा हवेली जो है इसमें मेरे बाद मेरी वाइफ रहेगी जब तक वो जिंदा है, और उसके बाद मेरे भतीजों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब सरदार जी चले गए, उनकी जो सरदारनी थी उन्होंने जो है एंजॉय किया लाइफ को। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार किसी और को देने के बजाय मैं तो गुरुद्वारे को दे दूं, वो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने अपनी विल लिख दी, उसमें गुरुद्वारे को दे दिया। बाद में उनके भतीजे जो थे साधु सिंह, उन्होंने केस किया, तो साधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब नारिके में डिस्प्यूट हुआ और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सरदारनी जी थी उनको राइट नहीं था इसको देने का, उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं था, उनको केवल लाइफ इंटरेस्ट मिला था। तो लाइफ इंटरेस्ट है तो वो केवल उनका रहने का अधिकार है, जब तक वो हैं उनको कोई भी रहने से रोक नहीं सकता। पर आफ्टर हर इट विल ऑटोमेटिकली डिवॉल्व ऑन द लेगेटीज हु वर मेंशन्ड इन द विल। तो इस तरीके से लाइफ इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रॉपर्टी फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है उसी को डील कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो फीमेल की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, उसके फादर की तरफ से आई है, हस्बैंड की तरफ से आई है, पर उसने बिल नहीं लिखी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये और आती है इसके अंदर कि उसके चिल्ड्रन नहीं है। अगर कोई फीमेल इंटरस्टेट है और उसके बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फिर उसके फादर की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी आई है वो उसके फादर को रिश्तेदारों में चली जाएगी। हस्बैंड की तरफ से आई है वो हस्बैंड या उनके रिश्तेदारों में चली जाएगी। तो अगर उनके बच्चे नहीं है तभी ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं होगा। दिस इज एक्सेप्शन टू फ्री डिस्पोजल। अब हम एक केस देखते हैं इसके अंदर। तो इस केस के अंदर आप देखें कि एक इंटरेस्टेड फीमेल है, उसका हस्बैंड है, उसका बेटा है, बेटी है और उसके मदर फादर है। तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी है इंटरेस्टेड वो किसके पास जाएगी? अरुण तोलवानी जी ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया सही समय पे, ऑल एक्सेप्ट पेरेंट। क्यों? क्योंकि क्लास 1 के अंदर हस्बैंड, सन और डॉटर आ जाएंगे। बिल्कुल सही विश्वास जी, गुरदीप सिंह मग्गा जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मदर फादर यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि मदर फादर सेकंड कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें से कोई भी जिंदा है हस्बैंड, सन, डॉटर में, तो पहले उनको मिलेगा। अब एक डिवोर्स्ड फीमेल है, उसके डिवोर्स्ड हस्बैंड को प्रॉपर्टी जाएगी या मदर फादर को जाएगी? मदर फादर को जाएगी। गुरदीप सिंह जी का सही जवाब है, पेरेंट्स को जाएगी। क्योंकि वंस शी इज डिवोर्स तो वो उसका हस्बैंड नहीं रह जाता, और हस्बैंड नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी इट विल ऑटोमेटिकली पास ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, मदर फादर। ठीक है, अब थर्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक फीमेल इंटरेस्टेड एक्सपायर हुई है और ना उसके हस्बैंड है ना बच्चे हैं, उसके केवल देवर हैं और ननंद का बेटा है। तो अब इसमें से किसको जाएगी? गुरदीप सिंह जी ने सही जवाब दिया, देवर को जाएगी। क्यों देवर को जाएगी, क्यों ननंद के बेटे को नहीं जाएगी? क्योंकि ननंद अगर जिंदा होती
तो उसको जाती, पर यहाँ पर ननंद जिंदा नहीं है, तो इसलिए ननंद के बेटे को कुछ भी नहीं आएगी, केवल देवर को चली जाएगी। देवर एक जिंदा है तो उस कैटेगरी का सोल पर्सन जिंदा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस व्यक्ति के पति जिंदा है, चाचा जिंदा है, बुआ जिंदा है और ननंद जिंदा है, और उसके फादर की तरफ से उसको प्रॉपर्टी आई थी और इस फीमेल के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? चाचा एंड बुआ। अरुण तोलवानी जी, बिल्कुल सबसे ज्यादा सही जवाब अरुण तोलवानी जी ने दिए हैं सर। तो पंकज सोनी जी, अरुण तोलवानी जी के लिए स्पेशल प्राइज आपकी ब्रांच की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि जहां पर फादर की तरफ से प्रॉपर्टी आई है और उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो दैट प्रॉपर्टी विल नॉट गो टू हिज हस्बैंड बट इट विल गो टू हिज फादर्स रिलेटिव, और फादर के रिलेटिव मतलब चाचा हुए और बुआ हुए, ननंद तो हस्बैंड की रिलेटिव हुई, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। सो राइट, ये हमने कुछ केस स्टडीज डिस्कस करी है जिससे हमको इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में मालूम हुआ। अब एक प्रोविजन होता है एस्टीट का। एस्टीट का प्रोविजन मतलब जहां पर भी कोई भी प्रॉपर्टी का लेने वाला नहीं है, कोई भी लीगल एयर नहीं है इसमें, कोई ना क्लास 1 है, क्लास 2 है, एग्नेट है, कॉग्नेट है, तो ये सारी प्रॉपर्टी भारत सरकार को चली जाएगी, ऐसा हमारा संविधान कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्पेशल प्रोविजन है एस्टीट का। सर एक क्वेश्चन है, अभी पूछूं हाँ या जी, एंड में? बोलिए बोलिए सर, चलने दें। सर एक फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, हाँ जी, उसके बेटे की बिना शादी के डेथ हो गई है, हाँ जी, और उसके बेटी की शादी के बाद डेथ हुई है, हाँ जी, ठीक है, और बेटी को एक बेटा है या बेटी है, जो भी है, बेटी को बच्चे हैं। हाँ, अब वो फीमेल के पास जो भी प्रॉपर्टी आई थी, हाँ, वो उसको उसके हस्बैंड से आई थी, हाँ जी, या जो बेटा गया उसके इंश्योरेंस के पैसों से आई भी है, और वो प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है, यानी उनका खुद का कोई इनकम सोर्स नहीं है, ना उनके पेरेंटल साइड से भी कुछ नहीं है। सो देयर आर 3 कंपोजिशंस। हस्बैंड की खुद की कमाई हुई इनकम में से आया है, सेकंड है जो बेटे की डेथ हो गई उसके इंश्योरेंस के पैसे से आया है, और थर्ड है कि उनको उनके फादर, उनके हस्बैंड के जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो आई है। तो अब अगर विदाउट विल तो वो विल में रिस्ट्रिक्टेड लिख के जा सकते हैं, या फिर कैसा होगा इसमें? मतलब देखिए वो विल में तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके चिल्ड्रन थे, ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन थे ही नहीं, चिल्ड्रन थे विच हैव डिसीज नाउ, तो वो वाला डिस्पोजल अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि उन्होंने विल लिख दी तो जिसको देना चाहे दे सकते हैं, विल नहीं लिखी तो क्या होगा? हस्बैंड सन डॉटर तीनों नहीं है, तो फिर सेकेंड कैटेगरी में आता है हस्बैंड एयर्स। तो हस्बैंड के क्लास 1 लीगल हेयर देखेंगे, तो हस्बैंड के क्लास 1 लीगल हेयर में उनके बच्चे आ जाएंगे, बच्चे नहीं है बेटी नहीं है तो नवासा नवासी आ जाएंगे, तो हस्बैंड के एयर्स को मिलेगा। तो इन दैट केस उसके हस्बैंड के एयर्स के अंदर बच्चों को मिल जाएगा, अगर विल नहीं है तो। और विल लिख दी तो शी कैन डू एनीथिंग, नो इश्यूज एट ऑल। राइट सर? चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है हाँ जी बग्गा जी का। सर, daughter who was adopted by father and mother expired, now whether she can have right in property of original father? Daughter who was adopted by father, And mother expired. ठीक है, now whether she can original father। देखिए सर, हिंदू जुवेनाइल एक्ट जो है वो कहता है कि वंस देयर इज एन अडॉप्शन तो ओरिजिनल जो भी फादर रहे होंगे उनसे सारे टाइज ब्रेकअप हो जाते हैं। तो लीगली अगर शी हैज बीन अडॉप्टेड बाय सम अदर फैमिली तो फिर शी विल नॉट हैव एनी राइट बिकॉज शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द डॉटर। पर अगेन इसमें एक आर्ग्यूमेबल प्रोपोजिशन ये हो सकता है कि नेचुरली बॉर्न चाइल्ड है वो, तो अगर प्रॉपर्टी में क्लेम करना है उसको, ऐसा कुछ करना है, तो वो फिर अडॉप्शन को चैलेंज करना पड़ेगा। वंस शी इज अडॉप्टेड तो जो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में ही उसका राइट रहेगा, नॉट इन द केस ऑफ अदर। नाउ अब इंटरस्टेट में और क्या सबसे बड़ी समस्या होती है कि नॉर्मली अगर विल हो तो हम एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, पर अगर इंटरस्टेट डेथ हो जाए तो हमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से लेना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल आयर सर्टिफिकेट की डिटेल आएगी, वैल्यू ऑफ एस्टेट एप्लीकेशन स्टेटमेंट थ्रू लॉयर, पब्लिक नोटिस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमको जो है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देती है। और आप क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हैं सर, औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है क्या?
यस सर, है, है। हाँ, है। तो फिर आपको तो प्रोबेट भी आपके यहाँ कंपलसरी होगा दिस मीन्स, क्योंकि प्रोबेट केवल बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना और ये सब आती हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है विल बनाना। विल से क्या होगा, तो विल से लिटिगेशन भी कम होंगे सक्सेसर्स के अंदर, प्रॉपर्टी के ट्रांसमिशन में भी दिक्कत कम आएगी, क्रॉस ओनरशिप ऑफ असेट्स वगैरह के मुद्दे भी नहीं आएंगे, नॉमिनेशन और जॉइंट ओनरशिप जो है ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट होते हैं, ये प्रॉपर्टी को डिक्विट नहीं करते, तो इसलिए विल इज देयरफॉर मस्ट। तो अब हम आगे देखने जाएंगे विल के बारे में। विल क्या है, टेस्टामेंट्री विल पे हम डिस्कस करेंगे। तो विल इज एन इंटेंशन ऑफ अ पर्सन, इट स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव ऑफ दैट पर्सन। तो विल एक इंटेंशन है कि मेरे बाद मेरी जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है वो किसको मिले। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो अगर विल नहीं हो आपकी तो फिर जो कोर्ट से अपॉइंट होता है एग्जीक्यूटर की जगह। प्रोबेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे शायद, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एप्लीकेबल है। कोर्ट आपको जब थप्पा लगा देती है विल के ऊपर कि नहीं ये विल परफेक्ट है, उसको प्रोबेट कहते हैं। कोडिसिल, कई बार हमने विल बना दी, रजिस्टर करा ली, सब करा ली, पर बाद में एक समस्या हमको ये आती है कि यार विल तो बना दी पर विल को अमेंड करना है, तो उसके लिए कोडिसिल बनाए जाते हैं। कोडिसिल है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट जब एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट है। इसके बाद में स्टैट्यूट। अब विल की हम बात करें तो विल गवर्न होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से। इट इज एन इंटेंशन ओनली, जीते जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट स्पीक्स फ्रॉम द ग्रेव ऑफ दैट पर्सन। विल कितनी भी बार बनाई जा सकती है, कितनी भी बार रिवाइज करी जा सकती है, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अब विल कौन बना सकता है, तो एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन मेक अ विल। मेजर होना चाहिए 18 साल से ऊपर का, साउंड माइंड होना चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में किसी ने विल पे साइन कर दिया वो वैलिड नहीं रहेगी। ही अगर कोई डेफ डम या ब्लाइंड है वो विल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, बशर्ते उनको पता हो कि विल के कंटेंट्स क्या है, और वो बताने के लिए वो प्रूव हो रहा हो कि उनको ये कंटेंट्स बताने के बाद ही उन्होंने साइन करी है। कई ये होते हैं कि किसी को पागलपन के दौरे आते हैं, ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसे केसेस में ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ सैनिटी, जब उस केस में डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि जब इसने विल साइन करी है तो उसकी मेंटल स्टेटस वाज प्रॉपर। डॉक्टर को विटनेस बना दें या एक डॉक्टर सर्टिफिकेट विल के साथ में लगा दें। देन व्हाई टू मेक अ विल, विल बनाने का पर्पस क्या है। विल से आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ये समस्या आती है कि डिस्क्रिप्शन हमारा मिस हो जाता है कि विल किसको प्रॉपर्टी दें किसको नहीं दें। कई बार इंटरेस्टेड हो जाता है, तो जिसको हम नहीं चाहते उसके पास भी प्रॉपर्टी चली जाती है, उसने भले ही हमारी सेवा करी हो नहीं करी हो, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, पर क्योंकि ही इज आवर रिलेटिव उसके पास प्रॉपर्टी चली जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए विल बना दें। विल आप किसी को भी दे सकते हैं, इट इज जो आपकी सेवा करता है उसके लिए एक रिवॉर्ड है। और एक यंग एज पे ही विल बना लेना चाहिए, क्योंकि विल आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार विल का लेक्चर दिया तो उसके पहले मैं खुद की विल लिख के आया, उसके बाद मैंने दिया। सर विल हम कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, तो एक कोई ये नहीं रखें कि हम इतनी एज के हो तो ही विल बनाए। हम सब मिलके बल्कि आज ही एक अपनी विल लिख दें। विल के अंदर कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेन पेज पे भी हम लिख देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मी ऑल माई प्रॉपर्टी विल गो टू माई वाइफ एंड शी विल बी द एग्जीक्यूटर, ये लिख दिया और नीचे साइन कर दिया, दो विटनेस के साइन हो गई आपकी विल। विल के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। कम से कम इतना तो हर आदमी को लिख देना ही चाहिए, क्योंकि कोविड है, कई सारे इश्यूज आते हैं। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक सिंपल विल तो लिख के रख दें, बाद में जो डिटेलिंग करनी है जो भी करनी है। तो अगर आपकी विल में एग्जीक्यूटर रहता है, आपकी विल रहती है, तो बहुत सारी समस्याएं भविष्य की आपकी बच जाती है। देन विल कैसी हो, तो रिटर्न होना चाहिए। ओरल विल केवल मुस्लिम्स में और सोल्जर जो वॉर फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए अलाउड है, बाकी ओरल विल किसी के लिए अलाउड नहीं है। वी मस्ट हैव अ रिटर्न विल। विल में बेनिफिशियरीज किसको आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो लिखना जरूरी है। इसको डिटेल लिख दें। कई बार विल में हम डिटेलिंग कर देते हैं तो कई समस्याओं से बच जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। विल में क्या क्या होना ही चाहिए। डेट, डेट क्यों चाहिए भैया, क्योंकि ओनली द लास्ट विल प्रिवेल। तो कौन सी विल पहली है, कौन सी बाद की है, कौन सी लेटेस्ट है, कौन सी लास्ट है,
ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें डेट से ही पता चलेगा। तो ओनली द लास्ट विल प्रिवेल, इसलिए विल के अंदर डेट होना चाहिए। सिग्नेचर या थंब मार्क ये होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन हमारा। एटलीस्ट 2 विटनेस होना चाहिए, कम से कम 2 विटनेस तो होना ही चाहिए। और एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें। एग्जीक्यूटर कई केस में देखा है हमने नहीं होते हैं, और फिर बाद में कोर्ट में जाके आपको फिर जो है वापस समस्या, कोर्ट के धक्के खाना पड़ेंगे आपको एग्जीक्यूटर अपॉइंट करवाने के लिए, और कोर्ट अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर होगा। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप विल के अंदर एग्जीक्यूटर लिखें ही लिखें, तो बहुत सारे काम बच जाते हैं। बेनिफिशियरी किसको बनाया जा सकता है? रिश्तेदार को, दोस्त को, एम्प्लॉय को, सर्वेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर को भी बनाया जा सकता है, स्ट्रेंजर को भी बनाया जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, अमेरिका के अंदर पहले मुंबई का एग्जांपल देते हैं। हमारे मुंबई में एक ट्रस्ट, एक कपल ने एक ट्रस्ट बनाया। उनके 2 डॉग्स थे, गोल्डन डॉग्स। तो दे यूज्ड टू लव देयर डॉग्स वेरी मच। तो उन डॉग्स की देखभाल के लिए उन्होंने ट्रस्ट बना के उस ट्रस्ट को 5 करोड़ रुपए की उनकी वेल्थ बेस्टो कर दी विल के अंदर, कि हमारे बाद जो है 5 करोड़ रुपए ये ट्रस्ट में जाएंगे और ये ट्रस्ट दोनों कुत्तों का ख्याल रखेंगे। जब ये फिर ऐसा ही एक एग्जांपल यूएस का है। यूएस का एक बहुत फेमस डिजाइनर था कार्ल लेगरफील्ड। उसने अपनी बिल्ली को, अपनी कैट के लिए 2700 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति का बेनिफिशियरी बना के दिया, कि मेरी बिल्ली और बिल्ली के आने वाले बच्चों को ये 2700 करोड़ रुपए की संपत्ति से उनका ध्यान रखा जाएगा। जब ये सब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे मदर टेरेसा की याद आई। मदर टेरेसा कई बार ये कहती थी कि पश्चिम मतलब वेस्टर्न कल्चर में वेस्ट के एक अकेले आदमी थे, वेस्ट में अकेलापन बहुत है। वेस्ट के एक व्यक्ति के मुकाबले हमारे कलकत्ता का एक कोड़ी व्यक्ति ज्यादा सुखी है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहता है। वो गरीब है, बहुत गरीब है, उसको खाने को नहीं है, पर फिर भी वो उस अकेलेपन से ज्यादा सुखी है। ये हमको एग्जाम्पल्स में देखने भी मिल रहा है कि लोग अकेलेपन के कारण अपने जानवरों को और किसी को भी दे रहे हैं। तो इससे ये चीज तो प्रूव हो जाती है कि आप किसी को भी विल के अंदर बेनिफिशियरी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं अपने रिश्तेदारों को बनाएं, कोई जरूरी नहीं अपने दोस्तों को बनाएं, आप जिसको चाहें उसको बना सकते हैं। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं आती है। अभी एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये आ गया है कि आपके ईमेल आईडी, आपका फेसबुक आईडी, इसके पासवर्ड रहते हैं। ये भी आपके, अगर जैसे कोई हमारे पंकज सोनी जी जैसा फेमस व्यक्ति है तो उनके फेसबुक पे 5000 फॉलोअर्स हैं, तो उनका फेसबुक अकाउंट अपने आप में वैल्यू रखता है। तो ऐसे फेसबुक अकाउंट से ये सब अकाउंट्स को भी विल में आप लिख दें तो इसकी भी एक अपने आप में वैल्यू रहती है। और जैसे बिटकॉइन है, तो अब प्रवीण जी बिटकॉइन में बहुत ट्रेडिंग करते होंगे अगर, तो बिटकॉइन का जो बड़ा फॉर्चून है, तो वो बिटकॉइन वगैरह की अगर हम बात करें तो ये इसका आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो ये विल में अगर हम लिख के देंगे तभी ये जो कंपनीज है ये शेयर करती है, अदरवाइज देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस केसेस। तो डिजिटल असेट्स के लिए भी विल के अंदर प्रोविजन करना चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूटर की बात आती है, तो सबसे कॉमनली मेड एग्जीक्यूटर अगर कोई है तो वो वाइफ होती है, स्पाउस होती है, वाइफ या हस्बैंड। तो उसमें क्या होता है कि जिसको मेवा मिलेगा वही धक्के खाएगा। तो एग्जीक्यूटर आपके यहाँ पर प्रोबेट करवाना रहता है, प्रोबेट कराने के लिए कोर्ट जाना, कोर्ट से सब कराना, तो ये कौन करेगा? आपने किसी थर्ड व्यक्ति को दे दिया तो बोले हाँ आते हैं, करते हैं, देखते हैं, वो रहेगा, जबकि प्रॉपर्टी तो किसी और को मिलने वाली है। तो इसलिए ऐसे केसेस के अंदर हमेशा जो बेनिफिशियरी है उसको आप एग्जीक्यूटर बना दो तो बहुत आसानी हो जाती है। सीए या कंसल्टेंट को बनाए या नहीं बनाए? सर पहले तो कंसेंट लेना जरूरी है। एक विल के साथ में कंसेंट लेटर भी लिखें कि अगर मेरे को कोई पता चला कि एग्जीक्यूटर बनाना चाह रहा है तो मेरी भी मैं चाहता हूं कि नहीं बनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कल को कोई किसी को भी एग्जीक्यूटर बना दे, तो इसलिए सबसे पहले तो कंसेंट होना चाहिए। और हम कंसेंट कब दें? अगर विल के अंदर हमारी फीस नहीं लिखी कि ये मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ये मेरे एग्जीक्यूटर रहेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कराने के लिए उनकी फीस इतनी 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 रहेगी, ये अगर लिख के जा रहे हैं तो हम एग्जीक्यूटर बने, अदरवाइज एग्जीक्यूटर बन के मतलब नहीं है, क्योंकि मगजमारी बहुत है, माथाकूट बहुत है और कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब हमें भी थोड़ा सा कमर्शियल होना पड़ेगा। ठीक है हम उसको हेल्प कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर तू इतनी संपत्ति अगर तेरे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा है तो वो संपत्ति प्रॉपरली उनको मिल जाए, उनका टेंशन कम हो। इसलिए हम अगर उसका प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ कॉस्ट असाइन टू इट। एग्जीक्यूटर प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए कि सपोज एक आपने एग्जीक्यूटर बना दिया और वो आपसे पहले निपट गया भाई साहब, तो प्राइमरी एग्जीक्यूटर नहीं है तो सेकेंडरी आ जाए। एग्जीक्यूटर कौन बन सकता है? जो खुद विल सकता है, लिख सकता है, वो एग्जीक्यूटर हो सकता है और ही शुड बी विलिंग टू बिकम एन एग्जीक्यूटर।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 67 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि विटनेस या उसके स्पाउस को आप बेनिफिशियरी नहीं बना सकते। मतलब क्या कि अगर मैं अपनी वाइफ को अपनी संपत्ति देके जा रहा हूं तो मेरी वाइफ फिर अटेस्ट नहीं कर सकती, विटनेस में साइन नहीं कर सकती, और अगर उसने विटनेस में साइन कर दिया तो वो जो बेनिफिट उसको मैंने दिया है वो उसको नहीं मिलेगा, वो इंटरस्टेट बटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। पर फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट में बहुत सारे इश्यूज हुए, समस्या आई कि यार हिंदूज में तो बहुत कॉमन है ये है, तो फिर उन्होंने एक एक्सेप्शन कर दिया कि हिंदू, जैन, सिख पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी क्रिश्चियंस की विल है, पारसीज, ज्यूज, इनकी अगर कोई विल है या नॉन हिंदूज की विल है तो उसमें ये सेक्शन 67 अप्लाई होगा। सो विटनेस शुड नॉट बी अ बेनिफिशियरी। हिंदूज में भी हम ये ध्यान रखें कि जब भी विल बना रहे हैं तो विटनेस वो हो जिसको हमने विल में कुछ भी नहीं दिया हो। अदरवाइज जो है किसी को अगर हमको शेयर लेना है किसी से, किसी को मिल रहा है और उसको पच्चर फंस जाए बेचारे को, तो उस केस में फिर बेनिफिशियरी विटनेस हो जाए। अदरवाइज इट इज टोटली नॉट एडवाइजेबल। सेक्शन 67 अलाउ नहीं करता, बेनिफिशियरी विटनेस नहीं हो सकता है, अदरवाइज उसका जो बेनिफिशियरी है वो उसको नहीं मिलेगा। विटनेस कौन होगा? ही मस्ट सी द पर्सन साइनिंग द विल। जो देख रहा है कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे सामने साइन करी, उसको ये जरूरी नहीं मालूम हो कि क्या लिखा है विल के अंदर, पर उसको ये मालूम होना चाहिए कि विल मेरे सामने साइन करी है। अब आप मैंने एक काम करा, मैंने बोला यार अपने लातूर वाले विशाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैंने विशाल जी को वीडियो कॉल किया कि विशाल जी जो है मैं विल देखो साइन कर रहा हूँ, तो आप भी जो है एक पेपर पे लिखो कि आपने मेरे को विल साइन करते देखा है और विटनेस पे साइन करके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। और मैंने वो प्रिंट निकाल के अपनी विल के साथ लगा लिया। तो क्या ये चलेगा? सर ये फॉरेन में चलता है, इंडिया में अभी फिजिकल विटनेसिंग की जरूरत है। हाँ, अगर मैं विशाल जी के घर के पास में रहता और उनको जो है दूर से आवाज देता, वो विशाल जी देखो मैं विल साइन कर रहा हूँ, देख लो मेरे को साइन करते हुए, और एक आप पेपर पे लिख के एरोप्लेन बना के मेरे को भेजो कि आपने मेरे को साइन करते देखा है, तो वो मैं विल के साथ लगा दूं तो वो लीगल है क्योंकि आपने फिजिकली साइन करते देखा है। पर इट हैज टू बी अ फिजिकल विटनेसिंग ऑफ साइनिंग ऑफ द विल। विल में क्या लिखा है उससे विटनेस को कोई मतलब नहीं, उसे केवल देखना है कि ये विल साइन हुई या नहीं। देन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सर, क्या होता है शादी से कई लोगों की कई चीजें चेंज हो जाती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने शादी के पहले कोई विल बना रखी है तो सेक्शन 69 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट बोलता है कि वो विल जो है भूल जाओ, उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का मालिक ही चेंज हो गया, शादी के बाद तो वाइफ सब मालिक बन जाती है, हस्बैंड का तो कुछ रहता ही नहीं। तो उन्होंने इस हिसाब से ये सेक्शन 69 बनाया है कि कोई व्यक्ति की अगर शादी के पहले उसने विल बनाई है और उसकी मैरिज हो जाती है तो उसकी विल ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। पर फिर यहाँ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख और मुस्लिम को एक्सेप्शन कर दिया, तो क्रिश्चियंस और उनके ऊपर तो ये एप्लीकेबल है, और हिंदूज में भी चैलेंज कई लोग कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि शादी के अगर किसी की शादी के पहले विल किसी ने बना दी जोश जोश में, तो शादी के बाद नई विल बना दें, नहीं तो वाइफ फिर क्या करेगी अगर उसके हाथ विल लग गई, वो आप सोच लीजिएगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि शादी के बाद एक अलग विल बनाए, क्योंकि पुरानी विल ऑटोमेटिकली गेट्स रिवोक्ड इन मेनी केसेस। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ विल की क्या करें? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है पर ऑलवेज एडवाइजेबल। रजिस्ट्रेशन करा लें, उससे जेन्युइननेस ऑफ विल के ऊपर बहुत प्रिजम्पशन मिलता है। इवन आपके यहाँ प्रोबेट कराने जाएंगे तो रजिस्टर्ड विल को प्रोबेट करने में दिक्कत कम आएगी आपको। और रजिस्टर्ड विल, अब एक सवाल ये आया कि एक व्यक्ति ने रजिस्टर्ड विल करवाई 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को उसने एक पेपर पे अपनी विल चेंज कर दी। 1 अप्रैल की रजिस्टर्ड विल है, 5 अप्रैल को नई विल लिख दी उसने जो रजिस्टर्ड नहीं कराई, और 6 अप्रैल को वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया। तो कौन सी विल प्रिवेल करेगी, 1 अप्रैल वाली रजिस्टर्ड विल या 5 अप्रैल वाली अनरजिस्टर्ड विल? कोई जवाब देगा सर इसमें? 5 अप्रैल वाली बिल्कुल सही, रमेश ठेटे जी ने सही जवाब दिया है। रजिस्टर्ड विल के ऊपर अनरजिस्टर्ड विल, जो भी लेटेस्ट विल है वो प्रिवेल करती है लॉ के हिसाब से। तो चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ओनली द लेटेस्ट विल प्रिवेल। आप नोटराइज भी करा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिस अगर रजिस्टर कोई नहीं करा पा रहा है तो, बट रजिस्ट्रेशन इज ऑलवेज एडवाइजेबल। इसके फायदे क्या क्या हैं? जैसे इनकम टैक्स में भी जब भी आपको लीगल हेयर को रजिस्टर करना रहता है तो लीगल हेयर रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। जैसे लीगल हेयर सर्टिफिकेट कोर्ट से इशू कराओ, या सर्वाइवर सर्टिफिकेट लोकल रेवेन्यू अथॉरिटी से कराओ, फैमिली पेंशन सर्टिफिकेट, या रजिस्टर्ड विल या लेटर इशूड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर रजिस्टर्ड विल है आपकी तो ये सब दूसरी कोई डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली फटाफट लीगल हेयर बना दिए जाओगे।
सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रजिस्टर्ड विल। इनकम टैक्स में भी उसकी समस्याएं कम आती हैं। देन सर अवतार मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अवतार सर, मूवी। एक मिनट इंटरप्ट करूं, एक क्वेश्चन था, फिर वो चैट बॉक्स में रह जाएगा कि बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने बताया सर बिल में बिटकॉइन वगैरह लिख सकते हैं, वैसे यूएस या ग्लोबली कुछ परचेस सिक्योरिटीज भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपके पास जो संपत्ति सब कुछ लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। पर एक और प्रैक्टिस फॉलो होती है कि अगर जो कोई बहुत बड़े एचएनआई हैं तो इंडियन प्रॉपर्टी के लिए अलग विल लिखते हैं और अब्रॉड प्रॉपर्टी के लिए अलग विल लिखते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, बट इट इज ओनली एन ऑप्शन, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर अगर ऐसा किया है तो अपनी इंडियन विल में लिख दें कि फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक अलग विल बना के रखी है, दैट इज इट। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति के दो बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत ही लायक, विनम्र, नम्र, और छोटा बेटा थोड़ा नालायक, पिताजी को हाँ डराता रहता था, डांटता रहता था। अब बाद में छोटे बेटे की और शादी हो गई, वो उसका अलग जाके रहने लगा। फादर्स डे के दिन पापा को जरूर कॉल करता, हाँ पापा हैप्पी फादर्स डे। उसके बाद कभी भी कोई पूछना नहीं, करना नहीं। बड़ा बेटा ध्यान रख रहा है, बीमारी में भी ख्याल रख रहा है। तो पिताजी ने विल लिखी और पिताजी ने सब कुछ विल में अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया। रजिस्टर्ड विल थी। छोटे बेटे ने चैलेंज किया विल को। छोटे बेटे ने क्या बोला कि ये पिताजी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके लिखी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे? पिताजी की उम्र ज्यादा थी, पिताजी भैया के साथ रहते थे, भैया जो है उनकी सेवा कर करके उनको मस्का लगाते रहते थे, तो इसलिए बोले उनके अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गए। कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट ने बोला भैया महेश कुमार, एक तो तुमने पिताजी की सेवा नहीं करी और दूसरा पिताजी की बड़े भाई ने सेवा करी तो तुम मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस। बोले ये कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, उनकी जगह कोई भी होगा तो यही करेगा। उन्होंने एक कह के उसके विल के चैलेंज को खत्म कर दिया। तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर किसी के साथ रह रहा है, कोई उसके साथ में है या बुजुर्ग उसकी एज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। पर एक मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसमें एक व्यक्ति ने सब कुछ अपने एक बेटे के नाम कर दिया, दूसरों को कुछ नहीं दिया, पर उसमें कोई रीजन नहीं लिखा। तो उसने छोटे ने चैलेंज किया उसको। तो कोर्ट ने बोला कि यार इसने, या उसमें बेटों के नाम नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के नाम ही कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि यार ये डाउटफुल है, क्योंकि पूरे की पूरी प्रॉपर्टी तीसरे व्यक्ति के नाम कर दी, बेटों के नाम नहीं करी, और क्यों नहीं करी इसका भी नहीं लिखा। तो कभी भी अगर विल बने तो उसमें आप लिख दें कि जैसे फॉर एग्जांपल बेटी को कुछ नहीं देना चाहते आप, या बेटी को ऑलरेडी आप बहुत कुछ शादी में दे चुके हैं, तो उसमें आप विल में लिख दें, स्पेसिफाई कर दें कि मेरी बेटी ने मेरी बहुत सेवा करी है और उसके बदले में जो है शादी में और समय समय पे उसको भेंट उपहार हम देते आए हैं, इसलिए उसको हम इतना दे रहे हैं और बेटों को इतना दे रहे हैं। तो जो भी कुछ लिखें एक शॉर्ट रीजनिंग के साथ लिख दें, तो विल अगर चैलेंज भी होती है तो वो फिर हमें सपोर्ट करेगा कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें एक्सरसाइज नहीं हुआ है। राइट। देन जॉइंट विल। अब ये सब क्या है, विदेशी संस्कृति जब से आई है भारत में, जितने डाइवोर्सेस बढ़ने लगे, जितनी ये समस्या होने लगी, तो ये कंसेप्ट आया है। जॉइंट विल मतलब ये एक तरीके से एक दूसरे को बांधने का एक तरीका है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। हस्बैंड वाइफ दोनों की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड वाइफ ये कर दें, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर दें, एक जॉइंट विल लिख दें। हस्बैंड ने लिख दी कि मेरे और मेरे वाइफ, बोले हम दोनों ही मिलके विल लिख रहे हैं और हमारे बाद ये प्रॉपर्टी जो है इस व्यक्ति को चली जाएगी, मेरे भतीजे को चली जाएगी, मेरे भांजे को चली जाएगी, जो भी लिखना है उसने लिख दिया। अब उसके बाद एक व्यक्ति अगर इनमें से एक्सपायर हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति फिर वो बिल को रिवाइज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जॉइंट विल थी और उनमें से अब एक व्यक्ति नहीं है। तो कई बार अगर हस्बैंड को भरोसा नहीं है कि वाइफ मेरे बाद में पता चला है पूरी प्रॉपर्टी किसी और को दे दे या दूसरी शादी कर ले, वाइफ को डर है कि ये जो है बहुत घूमते फिरते हैं, तो बोले इनको जो है पता नहीं मेरे बाद क्या करें, तो इसलिए इस तरीके के एक जॉइंट विल का कंसेप्ट आता है जहां पर ऐसा अविश्वास की स्थिति हो। पर अगर ऐसा अविश्वास कहीं नहीं हो तो दोनों की अलग अलग विल बनाए, जॉइंट विल के लफड़े में नहीं पड़े। ये केवल बड़े बड़े लोगों के लिए है सर। कई बार ये होता है कि हमने किसी को बेनिफिशियरी बनाया और ये कोविड टाइम में ऐसा हुआ है कि बेटा पहले एक्सपायर हो गया, पिताजी बाद में गए, तो वो बेटा पहले एक्सपायर हो गया और बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी लिखी है विल में, तो बेटे के जो लीगल हेयर्स हैं उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। बिल क्या नहीं कर सकते, आपने जो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो बिल कर सकते हो आप, शेयर इन एचयूएफ बिल कर सकते हो आप, अपना जो आपको इनहेरिटेंस में मिली है वो बिल कर सकते हो। पर टेनेंसी राइट, जो पगड़ी के किराएदारी राइट होते हैं, वो बिल करने का राइट इसमें नहीं रहता है। मोमेडियन लॉ के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वहां इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं लगता, इसलिए शरीयत लॉ के हिसाब से कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी का
अगर मेरे पास 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो मैं 30 करोड़ से ज्यादा विल में नहीं दे सकता। ओनली 1/3 प्रॉपर्टी कैन बी बिक्विटेड थ्रू विल। बाकी की जो 2/3 प्रॉपर्टी है वो मोमेडियन लॉ के हिसाब से उसके लीगल एयर्स को मिलेगी। अगर लीगल एयर्स उसकी मृत्यु के बाद कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है ये जाने दो, जैसे देना चाहते हैं दे दो, तो हो जाएगा। पर वो बात साहब ने अपनी जीते जी उनके जो लीगल एयर्स है उनसे कंसेंट लिखवा दी, तो वो कंसेंट वैलिड नहीं रहेगी। उन व्यक्ति के एक्सपायर होने के बाद में अगर वो 2/3 प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई मैटर है तो कंसेंट उसकी डेथ के बाद ही लीगल एड से लेनी पड़ेगी, तभी विल में जा सकती है, अदरवाइज वो विल वैलिड नहीं है। अब एक और समस्या आती है सक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप की। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है 4 लोगों के बीच में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक पार्टनर ने लिख दिया कि मेरे बाद मेरी जगह मेरे बेटे को पार्टनर बना देना, तो उसने विल में लिख दिया। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो यूनिलेटरल है, और पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है 4 पार्टनरों के बीच में। तो जब तक चारों पार्टनर एग्री नहीं हो तब तक नहीं कर सकते। तो कई बार सक्सेशन प्रोवाइड नहीं होता डीड में। हाँ, अगर उस व्यक्ति ने लिख दिया होता कि मेरे बाद, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि मेरे बाद मेरा लीगल हेयर ऑटोमेटिकली मेरा सक्सेसर बन जाएगा, फर्म में पार्टनर बन जाएगा, तो उसको बनाना पड़ता, क्योंकि वो एग्रीमेंट में उसने बाइंड कर लिया है अपने दूसरे पार्टनर्स को। पर अगर ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइडेड है तो नहीं हो सकता। ये एक विल के कॉमन क्लॉजेज है, नेम, एज, एड्रेस, रिवोकेशन ऑफ अर्लियर विल, लिस्ट ऑफ रिलेटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, लेगेसीज, रेसिडुअल एस्टेट, टेस्टिमोनियम, एग्जीक्यूशन, विटनेस, सेफ कस्टडी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कोडिसिल हमने जैसे बताया था, कोडिसिल वो होता है कि अगर विल को हमको चेंज करना है तो हम कोडिसिल के थ्रू चेंज कर सकते हैं, अगर पूरी नई विल नहीं लिखनी हमको तो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्टाम्प ड्यूटी का। तो स्टाम्प ड्यूटी विल पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो स्टाम्प ड्यूटी ऑन विल। हाँ, प्रोबेट जब आप करवाने जाएंगे तो कोर्ट की फीस है जो मैक्सिमम महाराष्ट्र में 75,000 है। 75,000 से ज्यादा प्रोबेट की फीस आपके यहाँ पर नहीं है। प्रोबेट क्या होता है? इट इज द ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर थप्पा लगा के दे देगी कि ये विल आपकी वैलिड है तो आपका प्रोबेट हो जाएगा। और प्रोबेट इज द फाइनल अथॉरिटी। एक बार प्रोबेट हो गया तो परफेक्ट काम हो गया। अब प्रोबेट आप कब तक करा सकते हैं? तो प्रोबेट के लिए नॉर्मली तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के 3 साल के बाद आप उसके लिए प्रोबेट लेने जा रहे हैं तो आपको डीले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। आप लोग से डील करते हैं प्रोबेट के अंदर? तो आपके यहाँ No, पर sir. प्रैक्टिकली प्रोबेट कितना आपके यहाँ मांगा जा रहा है अभी? कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, right, sir. किसी सीनियर मेंबर को आइडिया हो तो वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द सेशन कि प्रोबेट के अंदर आपके यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं। क्योंकि छोटे मोटे इश्यूज में तो प्रोबेट नहीं रहते, बड़ी संपत्ति में जरूर प्रोबेट मांगा जाता है। देन अब कुछ फेक रिपोर्ट या मिथ। फेक रिपोर्ट आजकल बहुत चलती है, फेक न्यूज व्हाट्सएप पे। तो ऐसी विल के रिलेटेड जो फेक न्यूज चल रही है उनको आज हम जो है उनका फेक रिपोर्ट चेक करेंगे। विल स्टाम्प पेपर पे होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हो। दुनिया की सबसे बड़ी विल, जो सबसे बड़ी संपत्ति लिखी थी एक आदमी ने, वो टिश्यू पेपर के ऊपर लिखी थी होटल में बैठे बैठे। लीगल फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं कोई फॉर्मेट नहीं है विल के लिए। विल कैन नॉट बी चेंज वंस मेड, कितनी भी बार बदल लो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज इफेक्टिव इन पर्सन लाइफ टाइम, नहीं उस व्यक्ति के मरने के बाद ही वो विल इफेक्टिव होगी। वन कैन नॉट एक्सक्लूड क्लोज रिलेटिव, सन, वाइफ इन द विल, बिल्कुल गलत। आप सब कुछ अपने नौकरों के नाम कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है। जरूरी नहीं बेटा, बहू, वाइफ, किसी को कुछ दो। विल नीड नॉट बी डेटेड, गलत। विल को डेट करना जरूरी है क्योंकि लास्ट विल प्रिवेल करती है। नॉमिनेशन प्रिवेल्स ओवर विल, गलत। विल प्रिवेल इन ऑल द केसेस, नॉमिनेशन विल नॉट प्रिवेल ओवर विल। Married woman cannot make a will, all women can make will, nothing doing, no need of witness, गलत। कम से कम 2 विटनेस होना चाहिए। मैरिज रिवोक्स अ विल, यस, बट नॉट इन द केस ऑफ हिंदूज। तो ये कुछ फेक रिपोर्ट से विल को लेके अब हम कुछ टैक्सेशन एस्पेक्ट को डील करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। अब अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो सबसे पहले तो उसका लीगल हेयर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। वो कहाँ करेंगे आप? तो ये नए पोर्टल पे आप देखें, ये मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करके मेरी प्रोफाइल में जाके रिप्रेजेंटेटिव असेसी में क्लिक करूंगा मैं। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो ये नीचे दिख रहा है, जब मैं यहाँ पर करूंगा तो वो ये डिटेल मांगेगा, पैन ऑफ डिसीज, सरनेम डिसीज, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम डिसीज, डेट ऑफ डेथ, बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ लीगल आयर, और उसके बाद में कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ डिसीज, पैन कार्ड ऑफ लीगल आयर, डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड विल। ये सब डिटेल हम जब उसमें अपलोड करेंगे
तो ऑटोमेटिकली हमको रजिस्टर कर देगा एज ए लीगल आयर। इसके बाद में अब टैक्सेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा सर, 2 से 3 स्टेजेस हैं इसके अंदर। एक व्यक्ति 30 सितंबर 2020 को एक्सपायर हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर तक की जो इनकम है वो उस व्यक्ति की तब की इनकम है जब वो जीवित था। तो ये उसी के पैन नंबर पे एज अ लीगल आयर सेक्शन 158 159 एप्लीकेबल होगा, और वो लीगल आयर जाएगा, रजिस्टर करेगा एज अ लीगल आयर और रिटर्न फाइल करेगा उस पीरियड के लिए। किसी भी डिसीज व्यक्ति के अगर साल में बीच में एक्सपायर हुआ है तो 2 रिटर्न हमेशा फाइल होंगे, ठीक है। उस व्यक्ति की डेथ की डेट 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ डेथ तक का रिटर्न होगा फाइल उसके ही पेन नंबर पे एज ए लीगल आयर। उसकी डेथ के बाद में अब हम देखेंगे कि विल है या नहीं है। विल नहीं है और संपत्ति बढ़ गई तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपना अपना फाइल कर देंगे। अगर विल है तो डेट ऑफ डेथ से लेकर डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी तक वो प्रॉपर्टी कौन मैनेज करेगा, एग्जीक्यूटर। तो तब तक के इस पीरियड के लिए एक दूसरा रिटर्न फाइल करेगा एग्जीक्यूटर, एक नया पेन नंबर लेना पड़ेगा उसको, एग्जीक्यूटर्स ऑफ द एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर सो एंड सो, और उसमें ये करेगा। अब आप कहेंगे नया पेन कौन ले, तो कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूशन को इमीडिएटली कर दे, जिस दिन डेथ हुई उसके अगले दिन ही सब डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई नहीं उसकी व्यक्ति की, और एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुई, जिसको बांटना है बांट दिया, वो अपने अपने रिटर्न में फॉलो करते रहेंगे। पर डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में अगर बीच में टाइम है, गैप है, तो ऐसे केस में ये जो पीरियड के अंदर इनकम अराइज हुई है डेट ऑफ डेथ से डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के बीच में, इसके लिए एक नया पेन अप्लाई करना पड़ेगा। वो नया पेन एग्जीक्यूटर की कैपेसिटी में होगा, एग्जीक्यूटर्स ऑफ द एस्टेट ऑफ लेट मिस्टर सो एंड सो, और उसका रिटर्न फाइल करेगा एग्जीक्यूटर। और तीसरा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसको जो प्रॉपर्टी मिली है वो उसकी इनकम हो जाएगी, वो खुद का रिटर्न अपना फाइल करते बैठे। तो नॉर्मली डेथ के केस में इस तरीके से 3 रिटर्न फाइल होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे सक्सेशन हो, टेस्टामेंट्री होता है और इंटरस्टेट होता है। अगर टेस्टामेंट्री है तो मैंने जैसे बताया कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके एग्जीक्यूटर्स जो हैं वो डेट ऑफ डेथ से डिस्ट्रीब्यूशन की डेथ तक जो भी प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करेंगे, और एग्जीक्यूटर के हाथ में टैक्सेबल होगा एक सेपरेट कैपेसिटी में। पर अगर इंटरस्टेट है और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई कोर्ट के थ्रू, तो वो संयुक्त प्रॉपर्टी के रूप में टैक्सेबल होगी एज ए टेनेंट्स इन कॉमन। तो उसमें भी एस्टेट होगी और टेनेंट्स इन कॉमन का कंसेप्ट हो जाएगा टिल द असेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 159 इससे डील करता है, और उस केस में एक सेपरेट असेसमेंट होगा। अगर कोई व्यक्ति को नोटिस दे दिया, जैसे मेरे को स्क्रूटनी का नोटिस दे दिया और स्क्रूटनी के नोटिस देने के बाद वो व्यक्ति एक्सपायर होता है, तो फिर वो नोटिस वैलिड रहेगा, फाइनल ऑर्डर उसके लीगल हेयर पे रहेगा। पर अगर उस व्यक्ति की डेथ के बाद में कोई नोटिस उसके नाम से आता है तो वो नोटिस और कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग सब इनवैलिड है, दे आर नॉट वैलिड। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर लायबल टू पे टैक्स ऑन एनी टैक्स और सम, मतलब टैक्स तो देना ही है, पर अगर कोई पुरानी लायबिलिटी है तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है, पर इट विल बी लिमिटेड टू द एस्टेट ही हैज रिसीव्ड। जितना माल मिला है उसमें से ही देना है, अपनी जेब से उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कुछ भी नहीं देना है। और ये जो पीरियड में रिटर्न फाइल होगा इट विल बी इन द लाइक मैनर इन द सेम एक्सटेंट एज द डिसीज, मतलब ये मान के कि वो जो डिसीज था उसके लाइक मैनर से, मतलब ये मानेंगे कि वो अगर जिंदा होता तो जो टैक्सेबिलिटी के रूल अप्लाई होते हैं वही रूल उसके केस में अप्लाई होंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में जब भी असेसमेंट होंगे तो खुद का अलग और सेपरेट असेसमेंट एग्जीक्यूटर का और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अलग होगा। ये अलग अलग होंगे और एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2 अलग रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे इसके लिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को असेसी मान लिया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी पर्सनल में से कुछ भी नहीं मानेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो जो डिसीज वर्सेस के पेन पे ही करेगा, कोई नया पेन नहीं लेना है। संपत्ति जब तक डेट ऑफ डेथ तक की जो इनकम है वो पुराने व्यक्ति के पेन के ऊपर ही उसका रिटर्न फाइल होगा। 168 विल बना दी तो डेट ऑफ डेथ से डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की इनकम एग्जीक्यूटर के हाथ में टैक्सेबल होगी, उसके लिए एक सेपरेट पेन लिया जाएगा, सेपरेट असेसमेंट किया जाएगा, उसका स्टेटस इंडिविजुअल मानेंगे। पर 2-3 एग्जीक्यूटर हैं तो उसका स्टेटस जो है एओपी मान के असेसमेंट करेंगे, पर इंडिविजुअल को मिलने वाली सारी छूट उस व्यक्ति को मिलेगी।
कई बार एक ही व्यक्ति बेनिफिशियरी और एक ही एग्जीक्यूटर है, पर जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तब तक दोनों सेपरेट प्रोसीडिंग मानेंगे, ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मान लेंगे कि उसने सब कुछ दे दिया या बांट दिया। देन स्टेटस हमने बात करी कि नॉर्मली स्टेटस इंडिविजुअल मानेंगे, पर अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटर है तो एओपी बनेंगे, पर उसको इंडिविजुअल के सारे बेनिफिट मिलेंगे, उस डिसीज व्यक्ति के लॉसेस का सेट ऑफ भी मिलेगा। कैपिटल गेन्स और अब टैक्सेशन के दूसरे, अगर कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसी को विल के थ्रू मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल गेन नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर नहीं है। इंटरस्टेट में भी नहीं आएगा, 56(2)(10) सेक्शन में भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनएडुएट कंसिडरेशन है, तो उसमें अंडर अ विल को एग्जाम कर रखा है 56(2)(10) के अंदर। सरेंडर ऑफ राइट, अब क्या हुआ, वो अवतार मूवी देखी थी ना हमने, अवतार मूवी में वो सचिन पिलगांवकर जो उसका सेवक रहता है, वो सेवक को अपनी प्रॉपर्टी देके जाता है, और गुलशन ग्रोवर उसका छोटा बेटा रहता है, वो बहुत बदमाश रहता है। एक दिन वो झगड़ने पहुंच गया सचिन के पास में, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मैं पापा के विल को चैलेंज कर दूंगा। सचिन ने सोचा कि मालिक का बेटा है, ले जा भाई, एक काम कर, हमको लिख के दे कि तू विल को चैलेंज नहीं करेगा, और ये ले जा 5 लाख। गुलशन ग्रोवर ने भी लिख दिया, मैं इस विल को चैलेंज नहीं करूंगा, मैं एग्री करता हूँ, और उसने 5 लाख रुपए ले लिए। अब ये जो 5 लाख रुपए गुलशन ग्रोवर ने लिए हैं, ये उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? तो मुंबई ITAT ने परवेज पूनावाला के केस में बोला कि नहीं, इट इज नॉट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देयर इज अ राइट टू कॉन्टेस्ट द विल विच हैज बीन सरेंडर्ड, सो देयरफॉर दिस इज नॉट टैक्सेबल, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। सिमिलरली कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी मिली विल में, अब वो बिल से लेने के लिए उसको धक्के खा के प्रोबेट कराना पड़ा, अब प्रोबेट लेके आ गया, उसमें खर्चा लाख रुपए का हो गया। अब ये लाख रुपए का खर्चा, वो कैपिटल गेन, अब वो प्रॉपर्टी बेच रहा है और क्लेम करना चाहता है, तो क्या उसकी छूट मिलेगी? नहीं, उसकी छूट नहीं मिलेगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इज नॉट अलाउेबल एज एन एक्सपेंडिचर। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, किसी व्यक्ति से हमको बिल में प्रॉपर्टी आई है, तो उस व्यक्ति ने जब ली थी तब से उसकी कॉस्ट और उसका होल्डिंग पीरियड दोनों हमको मिल जाएगा, सेक्शन 49 और सेक्शन 242A है इसके अंदर। अब HUF की कुछ बात करें हम, सर समय कितना है हमारे पास, समय है अभी? सर बहुत समय है सर, सर है कोई सर। प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। HUF की बात करें हम, HUF के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले तो HUF का फुल फॉर्म क्या होता है सर? HUF का फुल फॉर्म क्या है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैं दूसरा मानता हूं सर, हेडेक अनलिमिटेड। HUF इज हेडेक अनलिमिटेड फैमिली, क्योंकि HUF के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लो तो उसका टाइटल खराब हो जाता है। HUF में प्रॉपर्टी गई तो मतलब मान लो कि बहुत बुरी समस्या है। टैक्स प्लानिंग के लिए पुराने समय में यूज होती थी, पर आज भी अगर हमको इसको टैक्स प्लानिंग के लिए यूज करना है तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी रखें HUF के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रखना एडवाइजेबल नहीं है HUF के अंदर। अब HUF हम समझे, HUF बनती कब है? तो HUF बनाने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो जैसे ही एक व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो HUF उसकी बन जाती है, नरेंद्र नाथ का डिसीजन। पर इनकम टैक्स बोलता है कम से कम 2 को पार्टनर होने चाहिए, तो इनकम टैक्स के हिसाब से जब तक पहली संतान नहीं हो जाती तब तक HUF नहीं बनती। अब वो जो पहली संतान है वो बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहली संतान होगी उसकी, तभी 2 को पार्टनर होंगे और तभी वो HUF बन पाएगी। 9/9/2005 के बाद में जो नया कानून आया है, इसके हिसाब से जो बेटी है उसको बेटे के बराबर अधिकार मिल जाता है। बेटी कभी भी पार्टीशन डिमांड कर सकती है, पर बहू डिमांड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बहू इज अ मेंबर ऑफ HUF, बहू इज नॉट अ को पार्टनर ऑफ HUF। देन हस्बैंड में ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ, अब ये अपने आप में नया सवाल, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है कि क्या जो हस्बैंड है, हस्बैंड बेटी के हस्बैंड, क्या वो HUF के अंदर मेंबर होंगे या नहीं होंगे? अगर बहू होती है, बेटे और बेटी को समान अधिकार दिया, बेटे की स्पाउस मेंबर बनती है, तो बहू की या बेटी की स्पाउस क्यों नहीं बनेगी? तो अभी एक नया व्यू आ रहा है कि जो दामाद है वो भी HUF का मेंबर बनेगा, पर जैसे बहू या दामाद कोई भी पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते। पार्टीशन केवल जो उस फैमिली में पैदा हुआ है वही डिमांड कर सकता है। अच्छा, नवासा नवासी ये भी नाना की HUF में अब को पार्टनर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द HUF लॉ। नाउ मूविंग अहेड, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, लैंडमार्क डिसीजन है। इसके हिसाब से अगर बेटी 9/9/2005 को जिंदा है, पिता जिंदा हो या नहीं हो, अगर बेटी उस दिन जिंदा है तो उसका हक है। 9/9/2005 के पहले बेटी एक्सपायर हो चुकी है तो खत्म, तो फिर बेटी या उसके परिवार वाले डिमांड नहीं कर सकते। पर अगर 9/9/2005 को बेटी जिंदा है
तो वो संपत्ति में अधिकार डिमांड कर सकती है। अब हस्बैंड बोलेगा अगर पहले पार्टीशन हो गया तो बताओ रिटर्न पार्टीशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। अगर रजिस्टर्ड पार्टीशन नहीं है तो बेटी हक मांग सकती है, ओरल पार्टीशन इज नॉट अलाउड। तो बेटी का हक मारने के लिए कोई इस तरीके से पार्टीशन नहीं बोल सकता। कर्ता कौन बनेगा? एल्डेस्ट चाइल्ड, चाहे बेटा हो बेटी हो। मैरिड बेटी क्यों ना हो वो भी कर्ता बन सकती है। वो अपने फादर की एचयूएफ में कर्ता बन सकती है पर हस्बैंड के इसमें नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि कर्ता बनने के लिए को पार्टनर होना जरूरी है और जो बहू रहती है वो उस फैमिली की मेंबर होती है, को पार्टनर नहीं होती, राइट? सो को पार्टनर इज मस्ट। अब एक परिवार में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनका एक माइनर बच्चा है। अब एचयूएफ के अंदर समस्या ये हो गई कि वो व्यक्ति एक्सपायर हो गए, अब उनकी वाइफ है और उनका माइनर चाइल्ड है। तो उनके बाद में उनकी वाइफ क्योंकि मेंबर है वो कर्ता नहीं बन सकती और बच्चा माइनर है इसलिए कर्ता नहीं बन सकता। ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में श्रेया विद्यार्थी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कर्ता नहीं बन सकती वो, पर गार्डियन मैनेजर के रूप में फिर वो कार्य करेगी इतने साल में। शी कैन नॉट बी ए कर्ता बट शी विल बी ए गार्डियन मैनेजर टिल द चाइल्ड बिकम्स अ मेजर। देन पार्टीशन। पार्टीशन कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं, फुल और पार्शियल। अब इनकम टैक्स केवल फुल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज करता है, पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पार्शियल पार्टीशन हिंदू सक्सेशन एक्ट अलाउ करता है। जैसे मेरे परिवार में 10 प्रॉपर्टी हैं, अब मैंने बोल दिया कि यार एक काम करो, ये 10 प्रॉपर्टी है, वैसे 5 प्रॉपर्टी अपन बांट लेते हैं और 5 प्रॉपर्टी एचयूएफ में ही रहने देते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी जो हमने बांट ली वो पार्शियल पार्टीशन है। अब वो प्रॉपर्टी जिस जिसको दी, अगर उससे उन्होंने किराए पे चढ़ा और कुछ इनकम होती है तो वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, पर अगर कोई इनकम नहीं होती, सब उसमें रह रहे हैं, तो फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि इम्प्लीकेशन पार्शियल पार्टीशन का यही है कि जो प्रॉपर्टी पार्टीशन आपने कर दी है उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम एचयूएफ के हाथ में क्लब होगी। तो उसके फिर तरीके निकाले जा सकते हैं कि वो इनकम क्लब ना हो, पर पार्शियल पार्टीशन किया जा सकता है। पार्शियल पार्टीशन क्वा मेंबर हो सकता है, क्वा प्रॉपर्टी हो सकता है। मतलब कि 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग तेज चलते हैं तो 5 लोगों को अलग कर दो और बाकी लोग मिला के परिवार चला लें। या 10 प्रॉपर्टी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी घर जिसमें सब रहते हैं उसको एचयूएफ में रखें, बाकी सब घर सब लोग बांट लें। तो ये दोनों तरीके के पार्शियल पार्टीशन हो सकते हैं। पार्टीशन कैसे होगा? तो ओरल, बाय सूट, डीड ऑफ पार्टीशन, आर्बिट्रल अवार्ड से हो सकता है। हर व्यक्ति की डेथ पे एक नोशनल पार्टीशन होता है एचयूएफ के अंदर, जिसमें शेयर रीअलाइन हो जाते हैं, सबके शेयर बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे लोगों के अंदर। अब मैं एचयूएफ को गिफ्ट दूं और एचयूएफ से गिफ्ट लूं तो क्या होगा? एचयूएफ जब मुझे गिफ्ट देता है तो इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। तो गुजरात ट्राइब्यूनल ने बोला, राजकोट ट्राइब्यूनल ने, कि व्हाट इज एचयूएफ? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव। एक रिलेटिव से मिलने के बजाय पूरे रिलेटिव के ग्रुप से मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज नॉट टैक्सेबल। पर एचयूएफ के लिए रिलेटिव है उसका मेंबर, तो मेंबर। अब इसमें सवाल, अगला सवाल है सर, इसके ऊपर जो है प्रवीण जी प्राइज देंगे मेंबर्स को जो भी सही जवाब दे दें। एक व्यक्ति हैं सुबोध गुप्ता जी, उनकी मदर ने उनके बेटे की एचयूएफ में 10 लाख रुपए की संपत्ति दी है, क्या होगा उसके अंदर? एक मदर ने, सुबोध गुप्ता जी की माता जी ने उनके बेटे की एचयूएफ को 10 लाख रुपए गिफ्ट दिए हैं, क्या एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है? प्रीति जी कह रही है नॉट टैक्सेबल, गुलदीप जी कह रहे हैं एग्जेम्प्ट, गौरी जी कह रही है नॉट टैक्सेबल। इस बार जो है प्रवीण जी बच गए, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। ये टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों सर? एचयूएफ के अंदर मेंबर कौन होता है? एक एचयूएफ के लिए उसका मेंबर रिलेटिव होता है। मेरी एचयूएफ में मैं कर्ता, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। मेरी फैमिली में कौन आएगा? मेरी वाइफ और बच्चे। मेरे पिताजी मेरी फैमिली में नहीं आएंगे, मदर मेरी फैमिली में नहीं आएंगे, मैं उनकी फैमिली में आऊंगा, वो मेरी फैमिली में नहीं आएंगे। तो इसी को इंटरप्रेट करते हुए बॉम्बे ट्राइब्यूनल का एक डिसीजन है, एक तो विनीत राघव बानोदिया, इसके अंदर क्लियर कट राजकोट ट्राइब्यूनल ने बोला है कि एचयूएफ से कुछ मिले मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटिव से एक इंडिविजुअल को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। पर सुबोध गुप्ता एचयूएफ के केस में दिल्ली ट्राइब्यूनल ने बोला है कि मदर ऑफ अ कर्ता इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ, देयरफॉर व्हाटएवर गिफ्ट शी हैज गिवन टू द एचयूएफ इज अ टैक्सेबल रिसिप्ट अंडर सेक्शन 56(2). तो एचयूएफ से मिले एग्जेम्प्ट रिलेटिव को, पर रिलेटिव से अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो मेंबर नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट रिसिप्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। क्या होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी?
अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसा कुछ भी नहीं रहा। ये जो पुरानी पिक्चरें हम देखते थे, वो पुरानी पिक्चरें 1950-60 में बनी थी, जिसमें बेटा जो है पिताजी को बोलता था मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, आप मुझे जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। तो ये जो पुराने इश्यूज चलते थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के, ये 1956 तक थे, क्योंकि तब मिताक्षरा टीका लगती थी। अब मिताक्षरा टीका खत्म होने के बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया है, तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको एचयूएफ की प्रॉपर्टी छोड़ के, एचयूएफ प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी है, एचयूएफ के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, आपके फादर से आपको मिल रही है, भले 3 जनरेशन 4 जनरेशन पुरानी हो, वो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलती है। नॉर्मली मिताक्षरा टीका बोलती थी 3 जनरेशन, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को दी, उसके बेटे से उसके पोते को मिली और उससे पड़पोते को मिली, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पहले हो जाती थी। पर आफ्टर 1956 अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टीशन में मिली है, आपको मिली है, फैमिली हाउस है, कुछ भी हो, नाउ इट इज नो मोर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई है। तो जो पैतृक संपत्ति बोलते हैं, पुश्तैनी जायदाद बोलते हैं, ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। अब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पुश्तैनी संपत्ति नहीं बनती, एक्सेप्ट दोज प्रॉपर्टीज विच यू कंट्रीब्यूट थ्रू द एचयूएफ। जॉइंट होल्डर नॉमिनेशन, कोई भी जॉइंट होल्डर जो होता है, ही इज नॉट अ बेनिफिशियल ओनर एज सच, इट इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। कोई व्यक्ति मर गया तो बैंक अकाउंट बंद नहीं हो जाए, चलते रहे, काम चलते रहे, इसलिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जॉइंट होल्डर। इसके अलावा नॉमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन क्यों होता है? नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद वो पैसा स्मूथली मिल सके। विल और नॉमिनेशन में हमेशा विल प्रिवेल करेगी। मैंने एक्स व्यक्ति को नॉमिनी बनाया और वाई व्यक्ति को अगर विल में लिख दिया, तो वाई विल बी द ओनर। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो एक्स व्यक्ति के जो क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं, उनके मालिकाना हक रहेगा, तो वो उसको केवल जो है कस्टोडियन कैपेसिटी में नॉमिनेशन को मिला है, ही इज नॉट द ओनर। तो क्या करें, जब भी विल बनाएं तो सारे नॉमिनेशन चेक करें, और जो प्रॉपर्टी जिसको देना चाहते हैं विल में जिसके नाम लिखिए, उसी को नॉमिनी बना दें। तो इट इज अ वेरी स्मूथ ट्रांजेक्शन, यू विल बी सिंक्रोनाइजिंग योर विल एंड नॉमिनेशन। तो ये अगर कर दिया जाए तो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ हो जाता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड। एक इश्यू आपका बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आया था कि क्या शेयर्स में, डीमैट में नॉमिनेशन विल प्रिवेल? तो नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया, वहां भी विल प्रिवेल ओवर द नॉमिनेशन। तो शेयर किसी के भी नाम पे नॉमिनेशन क्यों ना कर दिए हो, और अल्टीमेट ओनर इज द पर्सन हु हैज बीन bequeathed the property in the will or interstate legal heirs। जॉइंट और नॉमिनी में क्या हायरार्की रहेगी? पहले जॉइंट, जब तक सारे जॉइंट होल्डर ना मर जाए तब तक नॉमिनी नहीं आएगा, जॉइंट के बाद में नॉमिनी आएगा, और अल्टीमेटली दोनों विल के बाद ही रहेंगे, विल सबसे ऊपर रहेगी इनके केस में। अब एक और कंसेप्ट होता है प्राइवेट ट्रस्ट का। इसकी मैं आपको जस्ट एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, क्योंकि अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है। प्राइवेट ट्रस्ट में भाई साहब क्या होता है कि एक सेटलर होता है, मैं प्रॉपर्टी है, एक ट्रस्टी होता है जिस ट्रस्टी को मैनेज करने के लिए दूंगा, और एक बेनिफिशियरी में बना दूं। जैसे एक हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने सोचा कि यार जो है वो पिक्चर देखी होगी आपने, जब भी मैट। तो जब भी मैट में जो शाहिद कपूर के माता पिता रहते हैं, वो बिजनेस पार्टनर रहते हैं, पर वो अलग हो जाते हैं, दे आर सेपरेटेड। और उस केस में वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज रहती है, जो भी रहती है, अब उनको चाहिए कि उनके बेटे को मिले, तो वो ये कर सकते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में रहे और बेनिफिट के फ्रूट उनके बच्चों को मिले। तो बेनिफिशियरी बना दे बच्चों को, प्रॉपर्टी ट्रस्ट में सेटल करके वो दोनों ट्रस्टीज बन जाएं। तो वो अगर ट्रस्टी बन गए तो दे आर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी, या एक प्रोफेशनल ट्रस्टी हमने अपॉइंट कर दिया, विल मैनेज द प्रॉपर्टी, देयर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल सेटल इट। अब सेटलमेंट भी 2 तरीके से हो सकते हैं, रिवोकेबल, इररिवोकेबल। और ट्रस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रिशनरी और स्पेसिफिक। डिस्क्रिशनरी में होता है कि अगर मैं चाहूं, जैसे एस्टेट ड्यूटी अवॉइड करने के लिए कई लोग फॉरेन में जो ट्रस्ट बनाते हैं कि जो भी मेरे बेनिफिशियरी है उनका शेयर डिफाइंड नहीं है, जो ट्रस्टी की मर्जी में आएगा, जब आएगा तब देगा, नहीं आएगा नहीं देगा, तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो जाता है। तो उसमें जो बेनिफिशियरी है वो बेचारे दया के पात्र हैं ट्रस्टी के आगे। इट इज सेड दैट दोज बेनिफिशियरीज हैव नथिंग बट मोर देन अ होप, उनको केवल उम्मीद है कि उनको कुछ मिलेगा। तो ये डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना के एस्टेट ड्यूटी से बचा लेते हैं कई लोग। और एक दूसरा होता है स्पेसिफिक ट्रस्ट, उसमें शेयर डिफाइन होता है, तो वो फिर अपनी इंडिविजुअल इनकम में भी ऑफर कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के ट्रस्ट होते हैं। अगर स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो इंडिविजुअल को जो रेट है उससे लगेगा, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उनके हाथ में एमएमआर पे उसका टैक्स लगेगा, और एमएमआर अब हो गया 42.74%। तो ये कुछ प्राइवेट ट्रस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं।
मेरा प्रेजेंटेशन सर्कुलेट कर दूंगा, बहुत डिटेल्ड में है. आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई फादर फॉर दिस प्रेजेंटेशन. आई हैव लर्नड अंडर बंसी मेहता साहब इन बॉम्बे, डॉक्टर अनूप शाह, गिरीश आहूजा जी, इन सब से बहुत सारे सबको सुन के प्रैक्टिकल लाइफ में जो अडॉप्ट किया है वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने का ट्राई किया है. एक माइनर चाइल्ड की टैक्स प्लानिंग प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू आप कर सकते हो कि उसको सेपरेट फाइल मानेंगे. अगर किसी का हाईएस्ट टैब में है तो वो ये एक तरीके से सेपरेट फाइल बनाने के लिए जैसे एचएफ बनाते थे हम, तो माइनर चिल्ड्रन के लिए टैक्स प्लानिंग थ्रू ट्रस्ट किया जा सकता है. सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ पेशेंट हियरिंग. नाउ आई थिंक आई एम ओपन टू ऑल द क्वेश्चन which you may participant, I'll request those who are having a question, एक तो chat box में chat कीजिए और raise your hands. No, Praveen, we have good amount of time, so let us raise hand, and क्योंकि typing में बहुत ये होगा. Okay, then okay. एक क्वेरी Raise your hand. गुरदीप जी की क्वेरी दिख रही है मुझे. प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर विल बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल और एचयूएफ. इट विल बी इंडिविजुअल. जब तक आप एचयूएफ में डालेंगे नहीं तब तक वो नहीं बनेगी. आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही मिली है सर वो आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट इनॉक्ट होने के बाद में. प्रीति असावाजी इन फॉरेन सेड देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन. नो फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन, तो उस केस में आप बिल में तो लिख ही रहे हैं, तो अल्टीमेटली विल प्रिवेल. नॉमिनेशन इज नॉट हायर देन अ विल. क्लबिंग ऑफ इनकम इन माइनर ट्रस्ट, ये डेफिनेटली अगर माइनर के लिए आप ट्रस्ट बनाते हैं प्राइवेट ट्रस्ट तो क्लबिंग नहीं होगी उस केस में. एमआर पाई का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस एस्पेक्ट के ऊपर, यू कैन नोट डाउन. एमआर पाई डिसीजन है, इसमें मेरे प्रेजेंटेशन में भी है उसके साथ में. सो देयर विल बी नो क्लबिंग ऑफ इनकम इन माइनर ट्रस्ट, देयरफॉर माइनर ट्रस्ट बनाया जाता है. माइनर स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाना है आपको प्राइवेट ट्रस्ट. What are the issues? जॉइंटली हेल्ड प्रॉपर्टी एडेड इन द विल. आपका शेयर आप बिल्कुल विल में लिख सकते हो जॉइंट प्रॉपर्टी का, कोई दिक्कत नहीं. कैन विल बी एक्सेप्टेड ग्लोबली? यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट. एक मिनट सर, एक हाथ भी रेज हुआ है. Yeah, good afternoon. Padmanabhan here. Actually, immovable property owned jointly by the spouses, both husband and wife. Can the will mention some other beneficiary other than the joint owner, or along with the joint owner, you can also add the children also as beneficiary? It's the first question. With regard to your share, if total amount is paid by you, then you are the beneficial owner. In that case, you can give it to anybody, not necessary to give it to the joint holder. It is on you. You are at free will to give it to anybody. There is no restriction whatsoever. You can give it to your children, you can give it to wife, you can give it to whatever, whomsoever you want. No issue. Thank you. The other question is, in the case of movable properties, for example, balances in various banks, shares with through various intermediaries and all, in the will, is it necessary to mention each and every share detail as well as each and every bank account detail, or Not you at are all. saying You are can saying mention in a digital? residuary clause. All the other assets owned by me and which are in my clear title shall be bequeathed to so and so. So no need to mention specifically about that. You are talking about some digital will. You may have to mention the credentials of the bank You may not accounts and all. mention the credentials. You may say that after me the credentials of my these IDs shall be given to Mr. So and so. So that so and so will take the will copy and mail it to the Google or Facebook or this Bitcoin managing company, and then they'll transfer the account in your name. Okay, thank you. Sir, a question है, can a CA appoint himself as a trustee of his children, for his children? Why not? CA भी इंसान होता है. ये बात अलग है, सुपरमैन होता है बट इंसान भी होता है. कुछ और क्वेश्चंस है शायद. गुरदीप सिंह बग्गा जी के क्वेश्चंस है. What are the issues on partition of HUF? What care should be taken while partition as per you? सबके कंसेंट से पार्टीशन होगा. सबको कुछ ना कुछ दे. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू. मतलब everybody's consent is required, all the members of HUF. When a karta expires, son will become karta. What information has to be given to department? सर एक लेटर फाइल कर दें आप, बट not necessarily son, the eldest child will become the karta. In case of a death of A,
person who has given land in joint venture and received cash flows but not due for taxation at the time of death since no completion, in whose hand the sum taxable. In that case, if the beneficial interest is given to the children, the child will do. Otherwise, you may make an estate of the estate, executors of the estate of late Mr. So and so, and there they will pay the tax. Ultimately, tax has to be paid. पांडे मॅडम, हा Yes, sir. हा विचारा मॅडम Yeah. क्वेश्चन प्लीज. थैंक यू सर. मेरा एक छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल है. एक एक्स व्यक्ति है, मिस्टर एक्स. उन्होंने अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है, लेकिन फॉर सम लीगल पर्पस या वो खरीद नहीं सकते थे करके उन्होंने अपने वाइफ के नाम पे, बेटों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी. अब ये मेरा क्वेश्चन है कि वो अपने विल में इस प्रॉपर्टी का डिस्पोज ऑफ के बारे में लिख सकते हैं क्या? बिकॉज ही इज नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लीगली, बट पैसे उन्होंने लगाए थे, तो वो उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं क्या? दिस इज माय क्वेश्चन. नो, बिकॉज व्हाट विल बी द डिफेंस? अगर वो कहेंगे कि मेरी ओनरशिप की है, मेरी बैलेंस शीट में आ रही है, तो द डिफेंस विल बी कि सामने वाला कहेगा कि ये पैसा मैंने एज ए लोन लिया था उनसे और इस लोन के बारे में उन्होंने बिल में कुछ नहीं लिखा है, तो अल्टीमेटली दिस इज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय मी, तो ही डज नॉट हैव अ टाइटल ओवर दैट प्रॉपर्टी. Once he has given it, he cannot take it away, or he does not restrict. अगर उन्होंने जो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ली है, उसमें कंडीशन या उस व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट होता, ये प्रॉपर्टी जो है मैंने तुम्हारे नाम से ली है, पर इसमें मेरा शेयर ये रहेगा, ये टाइटल ये रहेगा, ऐसा कुछ होता तो बात अलग है, अदरवाइज कुछ भी नहीं. प्रॉपर्टी घर के मेंबर के नाम पे ली गई है, फैमिली मेंबर, तो यहाँ फैमिली मैटर करती है क्या? नहीं, दैट वुड नॉट मैटर. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. और एक सवाल था, दैट इज विल जो है, वो जो बेनिफिशियरी है उनको दिखाई जा सकती है क्या? उनकी कंसेंट या उनको दिखाई जा सकती है क्या? घर के मेंबर है, क्योंकि विल तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं आजकल सीक्रेट, तो कैन इट बी शोन टू द फैमिली मेंबर जिनके नाम पे विल की है? See, nobody stops you from showing it to anybody, but ideally will is a kept a it depends on person to person. कोई खुली, किसी का जीवन खुली किताब जैसा है, तो वो दिखा देगी, ठीक है देखो बेटा तुमको ये दे रहा हूँ, तुमको ये दे रहा हूँ, पर उसके में कई केस में झगड़े हो जाते हैं फिर, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, या लोग यही करते हैं कि विल एक अपने हिसाब से लिख के कस्टडी में लिख देते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपने विल दिखा दी, तो सामने वाले के पास अब चांस है आपको परसुएट करने का कि विल में आप चेंज कर लो, तो वो विल में चेंज करने के लिए और आपको इन्फ्लुएंस करने के उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, टाइम रहेगी. आपने विल दिखाई, एक बच्चे को कम दिया, दूसरे को ज्यादा दिया, तो वो छोटा बेटा फिर आपकी बहुत सेवा करने लगेगा, और पता चला अगर उसने आपको परसुएट कर दिया तो फिर बड़े के साथ अन्याय हो सकता है. तो ये सब रियल लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं विल को सीक्रेट रखना. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर. Yes, when the will Padmanabhan. when the will is made, one has mentioned the existing immovable properties. It can be 4 or 5, for example. But by the time the individual dies, 1 or 2 of that properties might have been sold, or some new properties would have come. So what would happen to those properties? He will write something in residuary estate. So if nothing is written about those new properties, they will go in residuary estate. And those properties which have already been transferred, nothing to do about it. Okay. सर, और 2 क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में. इन केस ऑफ absence of will, what is to be done for jointly held property if one owner expire? जो ओनर एक्सपायर हुआ है उसके क्लास 1 लीगल हेयर्स के अंदर इंटरस्टेट वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. ओके. और एक क्वेश्चन है सर, आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड कैन वाइफ बिकम अ HUF विथ हर 2 चाइल्ड? वाइफ कैन नॉट बिकम HUF. HUF तो ऑलरेडी है. उस केस में अगर HUF नहीं बनी हुई है तो देखिए उसमें 2 को पार्टनर होना जरूरी है, और वाइफ फिर बनाएगी एज अ लीगल गार्डियन बनेगी. श्रेया विद्यार्थी का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन मैंने आपको बताया हुआ है. राइट. Okay, I think sir all the questions are. नहीं, गुरदीप जी ने पहले भी कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, तो गुरदीप जी अगर है, एंड इफ हिज ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, मे बी यू नो इन फ्लो दोस क्वेश्चंस माइट हैव गॉन. एक मिनट अनम्यूट कर देता हूं, गुरदीप जी को पूछ लेते हैं. गुरदीप जी.
हेलो हाँ गुरदीप जी, और हाँ। कुछ क्वेश्चन है आपके सर? सर एक मिनट, मैं एक्चुअली बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरा जो पहले का क्वेश्चन था रिगार्डिंग अडॉप्टेड चाइल्ड का, जैसे सर ने उसका आंसर दे दिया था, और नहीं अभी और कुछ नहीं सर, हो गया शायद, उसका आंसर हो गया। ओके ग्रेट। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो आजकल होता है ना, यूट्यूब पे बोलते हैं वीडियो लाइक करे, शेयर करे, ऐसे। तो इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, यू आई रिक्वेस्ट यू टू just mention in the WhatsApp groups that we are, you know, so that that gives an encouragement to the committee, and also when we call some good speaker, then people should be knowing कि ऐसे enlightened speakers भी है, because I think Pankaj Shah sir, we have called you for the first time in Aurangabad branch seminar. So such praising might encourage the branch members, and also it will give a good message to others also. यस सर, और एक क्वेश्चन आया है, जनरली स्पाउस इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटर, और कैन वी अपॉइंट चिल्ड्रन आल्सो एग्जीक्यूटर? इट इज योर फ्री विल whom you want to appoint. अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ इतने धक्के नहीं खा पाएंगी कोर्ट के, तो बच्चों को कर दें. इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन आवर ओन विल. कहीं कोई रिस्क नहीं है इसमें. सर जहाँ वो प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दिया आपको. और चिल्ड्रन भी मेजर रहने चाहिए ना सर? हाँ, तभी वो कर पाएंगे, नहीं तो राइट। सर एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है सर, कैन अ बेनिफिशियरी बी अ एग्जीक्यूटर इफ विल मेकर डिजायर सो? beneficiary cannot be witness. He can be an executor. No issues at all. ओके। हेलो हेलो हाँ हाँ गुरदीप जी। सर, वो एक क्वेश्चन था मेरा, एक्चुअली शायद आपने आंसर किया कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है सर. सपोज फादर ने प्रॉपर्टी ली है सपोज राजस्थान में, एंड देन ही शिफ्टेड टू महाराष्ट्र, so whether will has to be registered in Maharashtra or Rajasthan? Will is governed by Indian Succession Act 1925. So anywhere in India you can register the will. No issues at all. सर आप जैसे प्रोपेट का बता रहे थे, महाराष्ट्र में प्रोपेट है, इन दैट रेफरेंस आई वाज आस्किंग. See, प्रोबेट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी अगर राजस्थान में है और वहां पर आप अगर उसको सेल करने रजिस्ट्रार के पास जाते हैं और वो बिना आपकी प्रॉपर्टी को प्रोबेट माने वो रजिस्ट्री कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं. प्रोबेट नॉर्मली महाराष्ट्र में मानते हैं अगर महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी हो तो. ओके सर, थैंक यू. आई होप सर ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन आंसर्ड. आपका सेशन सर इतना इंफॉर्मेटिव था ना, और स्पेशली सर प्रेजेंटेशन और आपने जो एग्जांपल्स डाले, अदरवाइज ये बिल और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई थिंक ऑलमोस्ट सभी की कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुकी है. द वे सर आपने बताया कि प्राइवेट ट्रस्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, एक डेढ़ घंटा आप बोल सकते हैं. I hope कि in future will also take this private trust पे भी आपका सर कुछ सेमिनार, because I'll do one thing, sir. I have recording of one of my sessions of private trust. I'll share it with you, so you can circulate to the members. They can. अभी क्या थक भी गए होंगे लोग, और वो उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए. नहीं तो सर हम सेपरेट भले एक महीने में, अगले महीने में ऐसा कुछ रखेंगे सर. दैट विल बी, आपको लाइव सुनने में जो मजा है ना सर, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा सर. थैंक यू. सर एक और शायद हैंड रेज है पद्मनाभन. Sorry, to add one more. Actually, if I understood correctly what you said, even if immovable properties in Maharashtra, Chennai, Kolkata, if the will deals properly in terms of disposing to a particular beneficiary, then probate is not required. Am I right? No, sir. Probate is required when the property is situated within the jurisdiction of High Court of Bombay, Madras, and Calcutta. This is as per presidency town. This should be amended, but God knows why it has not been amended. So only within the jurisdiction area of Bombay High Court, Madras High Court, and Kolkata High Court, not Delhi. Only these three high courts, if anybody is living, in those cases probate is required. Probate is mandatory, not in other states. Despite the fact it is included in the will. Yes, the will help only in getting a probate easily. Otherwise, getting a probate is a big headache. So there will be convenience in getting a probate if a will is a registered will and a proper will. Oh, the problem is will is registered, but the amended will subsequently unregistered. Then
that will be a problem in probate again. It is equivalent to no registered will. Absolutely. It all depends from property to property. So which means every time you may have to register for safer side if you go on amending. So better think once, think carefully, and do not amend it very frequently. But registration is a tedious process or it's easy? Easy process. It is to be registered with whom actually? Sub registrar. Register. Okay. Thank you. सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं एक विल बना लूं और मैं उसमें एक एनेक्शर का रेफरेंस दूं, दिस प्रॉपर्टी ये बंदे के नाम पे, ऐसा जो भी मुझे एनेक्शर बनाना है, और वो एनेक्शर में किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी होगा, जो शायद उनमें का बेनिफिशियरी भी नहीं रहेगा, बट वो जो एक वेल विशर रहेगा, और वो मैं उसके पास अमेंड कराता रहूं, तो क्या उस एनेक्शर को उस रजिस्टर्ड डीड का पार्ट माना जाएगा? आपको वो अनेक्जर भी रजिस्टर्ड डीड के साथ में ही साइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बार बार अनेक्जर को चेंज करते रहो. दैट इज नॉट एडवाइजेबल. नहीं तो फिर सैंक्टिटी डाउटफुल हो जाएगी ना. मैंने विल लिख दी, कल को जो है कोई भी वो अनेक्जर निकाल के दूसरा अनेक्जर लगा दिया. उनका जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना, all are now getting scanned. So अगर amended भी annexure लगाएंगे, they have to be registered so that latest वाला amend होता रहेगा. पंकज सर, क्या आपका ये प्रेजेंटेशन आप हमसे शेयर कर पाएंगे so that we can share with the members? I'll just send it to you on WhatsApp in 5 minutes after this. Yes. Okay. पंकज सर, किसी ने पूछा कि क्या आपके कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं, तो शुड वी शेयर विद द पर्सन ऑन स्पेसिफिक इफ समबडी आस्क्स अस? Absolutely, it is written in the slides also. ओके No issue at all. ओके. एक हैंड ये हुआ है रेज. Yes, yes. Yes, प्रीति जी. हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर. सर एक्चुअली क्वेरी हमको ये था कि हम ना एक केस में ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू कोटक ग्लोबल, और हम लोगों को ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है कि उसमें वी डोंट हैव नॉमिनेशन फैसिलिटी, एंड इफ इट इज मोर देन $60,000 तो वो हमको ये यूएस का स्टेट ड्यूटी भरने के बाद ही हमको शेयर्स मिलेंगे इफ समथिंग हैपेंस. तो उसके लिए कुछ वे आउट है क्या? आई मीन विल में आ गया, दैट्स ओके, बट व्हाट अबाउट 40% स्टेट ड्यूटी व्हिच आई नीड टू पे? Don't invest in US. That is the only way. If you are investing in US, you have to abide by the laws of US. एनी अदर सॉल्यूशन? बिकॉज ये तो बहुत कॉमन रहेगा ना, बिकॉज ऑल मतलब फॉरेन मार्केट में जितना भी हमने इंक्वायरी किया, देयर इज नो नॉमिनेशन फैसिलिटी. Absolutely. See, state duty avoid करने के लिए तो we cannot suggest any solution. It is as per their law, they want it, so that is the law. So Okay. टैक्स अवॉइडेंस नहीं गाइड कर सकते, वैसे it is their tax. मेरा प्रेजेंटेशन सर चैट बॉक्स में डाल दिया है, everyone can download it. Yes, great sir. I hope सर ने सभी के क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया है और अच्छे से सेशन हुआ है. सर ने प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दिया जिसमें सर का कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है. सर और एक हैंड रेज हुआ है जस्ट. नमस्कार सर. शिव कुमार जी. शिव कुमार मालूम बोल रहा हूँ सर. बहुत बहुत नमस्कार. हेलो. हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है सर. बहुत बहुत नमस्कार. बहुत ही एजुकेटिव था सर. रिगार्ड्स टू यू. आई हैव सम स्पेसिफिक क्वेश्चन सर. कि बिगर एचयूएफ और स्मॉलर एचयूएफ, मतलब फादर की एचयूएफ और उनके लड़के की एचयूएफ ने मिलके कोई प्रॉपर्टी ली होगी. हेलो सर, आपका आवाज आ रहा है, आप बोलते रहिए सर. जी जी. तो प्रॉपर्टी ली होगी एंड अनफॉर्चुनेटली बिगर एचयूएफ के कर्ता जो फादर थे सन के, वो एक्सपायर हो गए. तो व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी सर? एचयूएफ पहली बात तो प्रॉपर्टी ले सकता है या नहीं ले सकता, दैट इज एन क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट ने रशीद लाल के केस में बोला है कि एचयूएफ तो पर्सन ही नहीं है, तो इसलिए वो ना पार्टनर बन सकता है ना कोई प्रॉपर्टी. आई एम टेलिंग अबाउट परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ bigger HUF, that is father's HUF, and smaller HUF, that is son's HUF, and unfortunately karta of the bigger HUF, that is father, died
automatically the son, if he is the only son, he will become automatically karta of bigger HUF too. Yes. Then in that case, what will happen, sir? To the share of the, see, the property is jointly purchased by two HUF. So One for is the respective shares, if you talk about 50-50 was purchased, the 50% of bigger HUF will be owned by all the co-partner of the bigger HUF, and the smaller HUF will have higher share because they have share in the older HUF also, and the share by virtue of new HUF also. जी तो सर, कुल मिला के हेडेक और बढ़ जाएगा। जी ये हेडेक और बढ़ जाएगा। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन था सर कि क्या होता है कि प्रॉपर्टी जब ऐसे अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के दो HUF के बीच में रहती घर में ही, तो उसके साइंस है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सी व्हेन वन इज करता ही इज एब्सोल्युटली मैनेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी टिल डिवाइडेड. In that case, signing of the rent agreements and all these issues crop up, sir. तो करता है जो सन है वो साइन कर सकता है कि on behalf of both the HUF. See, he can sign on the documents for routine thing, पर वो प्रॉपर्टी बेचना या वो प्रॉपर्टी किसी को देना वो सब समस्या वाला काम है। जी जी, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ले ले तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, और he can, but for the benefit of HUF he can लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह तो कर ही सकता है ना सर वो। अनलेस कोई चैलेंज करे कि नहीं मैं इससे बेटर लीव एंड लाइसेंस आपको दिलवा सकता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ओब्लाइज्ड। प्रीति, एक मिनट, मालू जी का हाथ, हाँ नहीं, प्रीति का भी हो गया उनका भी। यस, so we can conclude it, Praveen. Yes. Vishal sir है, Vishal sir is there from Latur. है, He is there. विशाल सर भी है। Vishal sir, should be concluded now? Yeah. Yes, Praveen. Yes, thanks a lot sir once again, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। जो काफी मेंबरों को क्वेश्चन आंसर पे से भी समझ में आ रहा है कि हॉट टॉपिक था, जरूरत थी ये टॉपिक की। So once again, thanks a lot from Aurangabad and Latur branch of WIRC of ICI. We'll definitely wait for sir private trust के लिए. We'll 100% invite you for the same. Praveen, in absentia here, but I would like to thank CA Kirti Joshi, chairman of Indore branch, who recommended Pankaj Shah sir to us for this seminar. Then special thanks to CA Kirti. Thanks all the participants for joining and asking the question. Thanks a lot. Thank you.